السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحیہ 10۔ امید ہے آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ کل جو ملتان میں بارش ہوئی ہے تو اس کے بعد ملتان کا جو موسم ہے وہ قدرے بہتر ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے ملتان میں کافی زیادہ گرمی واپس آ گئی تھی اور اس کے ساتھ حبس کا موسم تھا اور پسینہ تو ایسے بہہ رہا تھا پچھلے دنوں میں کہ بندہ کہتا کہ پھر وہی جون جولائی کی گرمیاں واپس آ گئی ہیں۔ لیکن کل ہم نے دیکھا شام کے وقت بادل آئے، اس کے بعد شدید موسلادھار بارش ہوئی، جو اگر 9 نمبر کے ایریا کی بات کریں تو وہاں پر 44 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اوورآل جو ملتان میں بارش ہوئی وہ 42 ملی میٹر ہے، کہیں پر 36 ملی میٹر ہوئی۔ اسی جگہ پرانا شیر آباد کے ایریا وہاں پر 34 ملی میٹر کے قریب، اس کے ساتھ ساتھ کری جمندہ کے ایریا میں وہاں بھی 39 ملی میٹر کے قریب بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو موسم اچھا ہو گیا، سب نے انجوائے کیا، بارش آ رہی تھی، لیکن بارش کے بعد جو مناظر ہم دیکھتے ہیں اپنی سڑکوں پر وہ ہمارے سیوریج سسٹم کے ہوتے ہیں کہ وہ نکاسی آب نہ ہونے کے باعث روڈز پر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز کا ہمیں کریڈٹ واسطہ کو دینا ہوگا کہ جتنے ان کے پاس وسائل ہیں، ہم تنقید کرتے ہیں پورے ملتان کی بات کریں تو ان کے پاس صرف 12 فلشر اور سکر مشین ہی ہیں جو کہ پانی کو صاف کر سکتے ہیں، صرف 12۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان 12 مشینوں سے پورے شہر کا جو سیوریج کا پانی اور واٹر سپلائی اور اس کے ساتھ بارش کا پانی صاف کیا گیا۔ تو یقیناً ان ورکرز کی، ان سیور مینوں کی محنت ہے جو آج ہم صبح آئے تو روڈز پر پانی نہیں تھا۔ کل ہم نے دیکھا کہ کل اس حوالے سے کافی زیادہ لوگوں کو پرابلم کا سامنا رہا۔ ہم نے دیکھا کہ حسین اگائی کے ایریا میں، سورج میانی کے ایریا میں، اور اس کے علاوہ رشید آباد پہ تو کئی عرصے سے یہ پرابلم ہے۔ وہاں پر جب سے میں ملتان میں ہوں تب سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں جب بھی بارش ہوتی ہے رشید آباد اور اس کے علاوہ طارق روڈ، یہ 2 پوائنٹس ہیں جہاں پر پانی لازمی جمع ہوتا ہے اور کئی گھنٹے رہتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ورکنگ ہونی چاہیے۔ اگر سیوریج کا پرابلم ہے تو وہاں پر نئی سیوریج لائن ڈالی جائے تاکہ یہ پرابلم مستقل حل ہو سکے۔ اور سیکنڈ، ڈینگی کا خطرہ اس وقت منڈلا رہا ہے، اور اگر ہم ڈینگی کی بات کریں تو ڈینگی کے کیسز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ ملتان میں کیس آیا، اس کے علاوہ مظفر گڑھ اور بہاری میں کیسز آئے۔ آج کی بات کریں تو آج سرگودا اور راجن پور میں ایک کیس رپورٹ ہوا ہے۔ نشتر میں اس وقت 2 ڈینگی کے کیسز زیر علاج ہیں، وہ ان کا علاج جاری ہے۔ تو اس لیے احتیاط کریں کیونکہ موسم اب چینج ہو رہا ہے۔ موسم جب چینج ہوتا ہے، ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو ڈینگی کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے احتیاط کریں۔ اور سیکنڈ، کرونا SOPs کا جو ہے ان کو بھی خیال کریں، اور سب سے اچھی بات کہ NCOC کے احکامات پر اب پابندیاں کم کرنے کے احکامات ہیں۔ کل سے جو مارکیٹس ہیں وہ 10 بجے بند ہوں گی اور ہفتے میں صرف 1 دن چھٹی ہوگی، 1 دن مطلب کہ لاک ڈاؤن ہوگا، پہلے 2 دن لاک ڈاؤن تھا۔ اور اس کے علاوہ جو اسکول کالجز کے حوالے سے پابندیاں تھیں وہ بھی کم کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ انڈور آؤٹ ڈور کے حوالے سے جو ڈائننگ ہے اس کے حوالے سے پابندیاں کافی نرم کی گئی ہیں۔ تو یہ ایک اچھی خبریں ہیں، لیکن ویکسین لازمی کرا لیں تاکہ یہ جو ابھی بھی پابندی ہیں وہ کم ہو سکیں۔ ہم اپنے اب موضوع پہ آئیں گے، جس طرح ہمارے ساتھ مختلف موضوعات پر بات کرنے کے لیے مہمان موجود ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف اسپورٹس سائنسز BZGO پروفیسر ڈاکٹر رانا دلشاد صاحب۔ ایجوکیشن سے بھی ان کا تعلق ہے، اس کے ساتھ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی ان کے پاس چارج ہے، تو ہم ان سے جانیں گے اسپورٹس کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے معاملات کے حوالے سے، اکیڈمک سٹاف کے الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، ڈیٹ بھی اناؤنس ہوئی تو ہم اس کے حوالے سے بھی جانیں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر رانا دلشاد صاحب، آپ کا کیسے ہیں؟ شکریہ آپ آئے یہاں پہ۔ تو سنیں، کل جو بارش ہوئی تو آپ نے کیسے موسم انجوائے کیا؟ جی یہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا، روہی چینل کا شکریہ۔ ہاں جی، یہ بڑی مچ اویٹڈ بارش تھی، کافی دیر ہو گئی تھی کہ ملتان میں بارش نہیں ہوئی تھی، حبس کا موسم تھا۔ تو روایتی طریقے سے اپنا اکیڈیمک کام کر کے شام کو پکوڑوں سے سیلیبریٹ۔ گھر میں پکوڑے بنے تھے یا گھر میں؟ کیونکہ باہر تو اتنا رش تھا دکانوں پہ، تو وہاں تو 1-2 گھنٹے۔ تو آپ خود فرمائش کرتے ہیں پکوڑے بنانے کی یا؟ ہاں جی، لیکن کل فرمائش نہیں کرنی پڑی۔ اچھا، کل جو ہے وہ مشترکہ پیشکش تھی بچوں کی، ٹھیک ہے، اور اسے انجوائے کیا، اور ظاہر ہے ایک موڈ آپ کا اچھا ہو جاتا ہے۔ تو عموماً جب اس طرح کا موسم ہوتا ہے تو آپ سیلیبریٹ کس طرح کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، تو آپ اس طرح کے موسم پسند کرتے ہیں؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ آپ باہر لان میں بیٹھ گئے، دوسرا دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے بیٹھک ہو جاتی ہے،
اور تیسرا جو ہے میں اس وقت چونکہ اسپورٹس سے تو متعلق ہوں لیکن مجھے تھوڑا سا کھیلنے کا بھی شوق ہے. آپ کے جوانی کی بات ہے، کبھی یہ ہوا کہ آپ اس موسم میں باہر چلے گئے ہوں، پھر گھر سے ہو کہ آپ کہاں چلے گئے اس ٹائم؟ آپ کو اس ٹائم گھر ہونا چاہیے تھا. نہیں، ایسا تو اکثر ہوتا ہے، اب بھی ہو جاتا ہے، اب بھی ہو جاتا ہے ایسے. ٹھیک ہے کہ آپ بغیر بتائے یا کم وقت کے لیے گئے ہیں لیکن زیادہ وقت کے لیے موبائل بھی چیک ہوتا ہے. ہاں جی، یہ تو ایک روٹین ہے. لیکن ابھی تک ٹھیک ہے معاملہ. ماشاء اللہ. تو یہ ملتان میں ویسے نا بارش ہوتی کم ہے، کیونکہ لاہور میں کل میں نے کال کی تو نے کہا لاہور میں مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں. وہاں کا ٹیمپریچر اور ملتان کے ٹیمپریچر میں کافی فرق ہے. میرے کل پرسوں مہمان آئے تو نے کہا ملتان میں ابھی تک گرمی نہیں گئی، لیکن شکر ہے کل موسم چینج ہو گیا تو اب کچھ ملتان کا بھی، اور امید ہے کہ آگے رہے گا، اس طرح آگے رہے گا. جس طرح یہ چیزیں ہمارے کس طرح کی جو اگر موسم چینج ہو جائے تو چہرے پہ واقعی رونق آ جاتی ہے اور مزاج بھی اچھا ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اسی طرح ایک چیز ہے جو سپورٹس ہے، جب بندہ پرفارم کرتا ہے، ایکٹیویٹی کرتا ہے، اس کے بعد اس کا انرجی لیول اور ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے. سپورٹس کے حوالے سے کتنا ورک ہونا چاہیے؟ ابھی ایڈمیشن بھی ہوئے ہیں، ایڈمیشن کی کیا ریشو رہی ہے اور اسٹوڈنٹس کا رجحان نظر آ رہا ہے یا کم اس بار نظر آیا ہے؟ تو جو ہے جنرلی BZU کی اگر ہم بات کریں تو ایڈمیشن کو 1 مہینہ پہلے اناؤنس ہو گئے. ایک بار اس بار تھوڑا پہلے ہو گئے تھے. حالانکہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ پورا کمپین چلتی تھی سوشل میڈیا پہ اور فیمیل اسٹوڈنٹ میسج کرتی تھی، اس کے بعد میل اسٹوڈنٹ ہو، یہ چلتے رہتا تھا سیکوینس کے یار ایڈمیشن شروع ہونے، ہم نے یونیورسٹی جانا ہے. لیکن اس بار کچھ جلدی کیا اس دفعہ تھوڑا سا مینجمنٹ جو ہے پرو ایکٹیو تھی. تو ان کا خیال تھا کہ جو کورونا کی وجہ سے بعض جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں دے سکے، اپنا ان کا رزلٹ نہیں آیا، تو ان اسٹوڈنٹس کو بھی انگیج کیا جائے. تو اس کے لیے HEC کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق جو ایڈمیشن ٹیسٹ، ایک جنرل ایڈمیشن ٹیسٹ اس بار جو ایک نیا فارمولہ لے کے وہ ٹیسٹ ٹیسٹنگ کا رجحان کامیاب رہا، کیونکہ ابھی اسٹوڈنٹ کی یہ صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں ان سے تو انٹر کا ٹیسٹ بھی نہ لو، میٹرک کے بھی نہ لو، ان سے داخلے کا ٹیسٹ ہے ایسا ہی. لیکن یہ ایک جنرل ٹیسٹ تھا جس میں جنرل نالج، پاک اسٹڈی، اسلامیات، میتھس، ٹھیک ہے، جو ہے انگلش، اس حوالے سے ہوتی چیزیں. اس ٹیسٹ کا ویٹیج تھا کہ آپ جتنے مارکس لیں گے وہ آپ کے ایڈ ہو جائیں گے میرٹ میں. اس میں میٹرک وغیرہ بھی ایڈ تھے، میٹرک کے بھی مارکس اور اس ٹیسٹ میں. اچھا، جب انٹر کا رزلٹ نہیں آیا تو پھر کس طرح سے وہ اس کا پھر یہ پروویژنلی ایڈمیشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جب اگر وہ پاس ہیں تو ان کا مینٹین رہے گا. ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے وہ آپ کو ظاہر ہے معذرت کرنا پڑے گی. والدین تو بیچارے ابھی میرٹ لسٹیں لگ رہی ہیں، ختم ہو گئی ہیں؟ مارننگ کی میرٹ لسٹیں موسٹلی لگ گئی ہیں. یہ ویسے کافی انتظار اس دفعہ ویسے یونیورسٹی نے زیادہ موقع دیا ہے. پہلے 4 لسٹیں لگتی تھیں، اس دفعہ 7 لسٹیں لگی ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ چانسز اور ایڈمیشن تاکہ پورے بھی ہو جائیں. تو کیونکہ جلدی ایڈمیشن ایک جو میرٹ لسٹ کا کافی مزدار سا سین ہوتا ہے کہ پہلی میرٹ لسٹ لگتی ہے، جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ میرا نام آیا کہ نہیں ہے. جب نہیں آتا تو پھر گھر والوں کی سننی پڑتے ہیں کہ یار تمہارا نام نہیں آیا چاہیے، پھر وہ انتظار ہوتا ہے کہ دوسرے میں جو 7 میرٹ لسٹوں تک امید ہے کہ وہ اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی کہ ایک اسٹوڈنٹ کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس میں چاہے اپلائی کر سکے. ہمارے یہاں ایک عجیب سی روٹین بھی ہے اور ایک اچھی روٹین بھی کہہ سکتے ہیں بعض اوقات. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ 4-3 جگہ پہ اپلائی کر لیتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاں بھی اس کا نام آ گیا، یہاں بھی نام آ گیا، یہاں بھی آ گیا، تو پھر اسکپ 2 ڈپارٹمنٹ. اس میں پھر اکثر یہ ہوتا ہے کوئی میڈیسن میں جانے والے ہیں جیسے MBBS میں، انجینئرنگ میں، پروفیشنل ڈگریز میں. تو جو پہلی لسٹوں میں پہلی لسٹوں میں یہ جو ہے نا ایسے ہی زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں جو ٹاپ رینکڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ کم انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو جو ہم جیسے ہیں وہ ان کا پھر دوسری تیسری لسٹ میں نام زیادہ تر. آپ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو نمبرز ہوتے ہیں وہ انسان کے اس کو شو نہیں کرتے آپ کا؟ جی، میں چونکہ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، میرا بنیادی شعبہ یہی ہے، تو میں بالکل اس سے مطلب 100% ایگری کرتا ہوں. آپ نے بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کو گریڈز چاہیے؟ نہیں، میں نہیں. گریڈز جو ہیں وہ ایک حد تک ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کی ایبلٹی کو، آپ کی پرفارمنس کو. زیادہ کیا ہے اہم؟ لرننگ. اور لرننگ میں صرف اور صرف نالج نہیں بلکہ اسکلز بھی. اسکلز کے ساتھ ساتھ بیہیویئر بھی، بیہیویئر چینج. ہم بتاتے ہیں اپنے، کیونکہ میرا شعبہ ہے تعلیم اساتذہ، کہ ہم اساتذہ کو ٹرین کرتے ہیں کہ کیسے پڑھایا جائے.
تو ہم نے نالج ہی تک ہم محدود ہیں عام طور پر. تو سکلز کے حوالے سے ہماری ایجوکیشن تھوڑا سا اسکل کے حوالے سے تینوں چیزوں میں ہونے چاہیے, فوکس کرنا ہوگا. ہمارے پازیٹیو بیہیویئر, سیکنڈ ہمارے اداروں کو بھی, ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی اس طرح سے رجحان میں آنا ہوگا. اچھا, اس وقت ایک اور میں چیز آپ سے, جو آپ کی فیملی میں کچھ اسپورٹس کی طرف کیا رجحان ہے بچوں کا؟ میں بچے کھیلتے ہیں جیسے روایتی طور پر کرکٹ. تو میں بھی اپنے طالب علمی کے زمانے میں زیادہ پروفیشنلی تو نہیں کھیلا, لیکن کرکٹ. آپ کا بھی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے, تو آپ کہتے تو ہوں گے یار یہ. ہاں, میں بالکل, میں اسے ضروری سمجھتا ہوں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں, ایک تو ایکیڈیمک سائڈ ہے آپ کی, جو بیلنس پرسنالٹی ہے اس کے لیے آپ کو جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہے اس میں حصہ لینا ایک اور چیز, ہمارے ٹیچرز کو بھی اسپورٹس کی طرف رہنا کافی اہم ہے, کیونکہ وہ اس میں رہیں گے تو ایکٹیو رہیں گے. اور تو ان کے لیے کوئی ہے؟ ہاں جی, ہمارے ہاں فیسلٹیز موجود ہیں, اسپورٹس کمپلیکس موجود ہے, جم موجود ہے, اور کئی جو ہے کلبس بھی ہیں. ایک طرح سے ایک اسپورٹس کمیٹی جو ہے, اسپورٹس کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں ٹیچرز اور ڈائریکٹر اسپورٹس اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ امپلائیز کے لیے اور ٹیچرز کے لیے اسپورٹس فیسلٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں. جیسے میں بیڈمنٹن ریگولرلی کھیلتا ہوں شام میں, تو میرے کولیگز جو جوائن کرتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, تو میں بڑا اچھا وہ ٹائم ہوتا ہے, یہ 2-3 گھنٹے. ویسے بیڈمنٹن میں تو کافی اسٹیمنا چاہیے. جی, بس یہ خود کو فٹ کرنے کے لیے, رکھنے کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی, کافی اچھی وجہ سے کہ موبائل فون یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں. ایسے وہ موبائل پہ تو ہمارے نوجوان 8-9 گھنٹے رات کو یوز کرتے رہتے ہیں, لیکن گیم اگر آدھا گھنٹہ بھی ہو جائے, 1 گھنٹہ بھی ہو جائے, تو آپ سارا دن اچھا فیل کرتے ہیں, فریش ہو جاتے ہیں. فریش ہو. جی, ہم مزید بھی سوال سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سوشل ورکر ہیں امرین بلوچ صاحبہ. امرین بلوچ صاحب, آپ کو خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. آج کل پہلے ہم دلشاد صاحب سے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ بارش ملتان میں ہوئی ہے, اور ملتان کا موسم کافی بہتر ہو گیا ہے. تو آپ نے ملتان جو بارش ہوئی ہے تو کیسے موسم انجوائے کیا, کیسے گزارا؟ بارش ہوئی تو آپ کو ساتھ پتہ ہے کہ جو موسلا دھار تو بہت دور کی بات ہے, ذرا سی چھم چھم بھی ہو, جھم جھم بھی ہو تو لائٹ جلی جاتی ہے. تو پہلے تو ماشاءاللہ لائٹ جانے کا مزہ لیا سب نے, لیکن یہ کہ موسم اچھا ہوا تو گرمی میں کا توڑ ہوا تو بہتری ہے, اللہ کرے گا. اس میں آپ نے کوئی پکوڑے سموسے بنائے یا بس ایسے ہی؟ بالکل پکوڑے سموسے. آج کل میرے گھر میں کل شور تھا, میرا بیٹا کہہ رہا تھا پکوڑے بنائے, لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل گلے خراب اور زکام وغیرہ کا ہے سیزن, تو میں نے اوائڈ ہی کیا کہ نہ بھائی نہیں, یہ جو چل رہا ہے نا گھر کا ماحول, وہ بہتر ہے کہ سلامت رہے. جی بالکل. کل اصل میں ہم بھی بارش ہوئی تو بارش کے بعد ہم انجوائے کرتے رہے, اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ سموسے کھانے چلتے ہیں. تقریباً 1 گھنٹہ ہمیں لگا, اور ہمارے جو پروڈیوسر حیدر, وہ بیچارے 1 گھنٹے تک پھنسے رہے سموسوں والے کے پاس. تو لوگوں میں رش دھکا بے, ہم باہر انجوائے کر رہے تھے, وہ کافی زیادہ وہاں پر ہم نے بھی انجوائے کیا. اچھا, آج کل سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے, نوجوانوں سے ہم نے ڈسکس کیا, موبائل کا استعمال ہے. تو سوشل میڈیا کا ایک جانب استعمال بہتر ہے, ایک جانب ہماری حکومت بھی کی جو کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سوشل میڈیا کے تھرو اس کو پیک ملا تھا, اور دوسری جانب مس یوز اس کا استعمال ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو کئی زیادہ ایسی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کا رویہ ہے. تو جو سوشل میڈیا کا مس یوز ہے اس کو ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں, اور اس کو کس طرح سے مانیٹر کرنا چاہیے؟ نہیں بلال بھی, آپ نے بالکل بہت اچھی بات کر لی, اور کیونکہ آج آپ نے میرے ساتھ استاد محترم کو یہاں بلایا ہے, بہت خوش نصیبی ہے ہماری, بہت اچھی بات ہے. اس لیے کہ ابھی یہ بات کر رہے تھے رویوں کی, تربیت کی, اور صرف گھروں میں نہیں, تعلیمی دستگاہ جو ہوتی ہے وہ میں تو یہ کہتی ہوں وہ ہمارا گھر ہی ہوتا ہے, اور والدین تو والدین کے حوالے کر دیتے ہیں. اب یہاں جو تربیت ہے نا, اس میں آج کے دور میں, اس ماڈرن ایج میں جو ہمارے ہاتھ میں یہ جو گیجٹ آ چکا ہے, یہی سب کچھ ہے. ہمارا بچہ ہمیں ماں باپ نہیں سمجھتا, اس کو ماں باپ سمجھتا ہے, اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ وہاں سے جو کچھ اس کو پوسٹ آ جائے گی, اس کی وہ سمجھ لے گا, اس کو وہ سمجھے گا یہ نصیحت ہے. جو اس کے بڑے, چاہے جو ہمارے ایک آپ آج کل ہم لوگ نام لیتے ہیں موٹیویشن اسپیکر کا نام, یا موٹیویشن اسپیچ کا نام. میں خود بھی اگر کہوں کہ میں بھی یہ کرتی ہوں اس حوالے سے, یا تمام تو استاد محترم ہوتے ہیں. اچھا, اس کا بھی کانسیپٹ کہاں سے اور کیوں آ گیا؟ بہت سے لوگ اس کے نیگیٹو بھی بولتے ہیں, پازیٹیو بھی. آپ کے سوال سے جڑے ہوئے میں کہہ رہی ہوں, جب ہمارے گھر میں بزرگ ہوتے تھے نا,
या हैं भी, वो हर बात- लेकिन हम बुजुर्गों को जब सुनते थे हमारे लिए मोटिवेशन स्पीच वही हुआ करती बिल्कुल थी, ऐसे हम ही। उससे वो समझते अपने तजर्बात अपने बहुत वसात कुछ, शेयर करते थे। बहुत कुछ। मैं हमेशा अक्सर आपके इस प्लेटफॉर्म पे ये कहती रही हूँ कि आपके और हमारे बड़े हमें सुनते थे। बिल्कुल जब हमें वो सुनते थे ना, जब हम जो चाहे बोलते रहे पटर पटर, स्कूल की पूरी ऐसे। रुदात सुना के नहीं थकते थे हम। किचन में माँ खाना बना रही है, जॉब करके आई है, जहाँ भी हमने बिल्कुल जो ऐसे है। नहीं उसका सर खा लिया, कान पका लिए, हम नहीं चुप करते थे क्योंकि वो सुनते थे। वो जब हमें सुनते थे खामोशी से तो हमारे से उन्हें वो हमें परख लेते थे। अब यहाँ से मैंने कहाँ समझाना है इसको, ये कौन सी हाँ, कहाँ मिस्टेक से कर ये रहा है या थोड़ा सा कर रही, साइड- बिल्कुल, कर लेते थे। बिल्कुल। अब ये है हम दोनों में, यानी हमारे बच्चों के पास वैसे गैजेट्स आ गए, उनके पास टाइम नहीं है हमें देने को। फिर हम लोग, हम जो माँ बाप बन चुके हैं, हम या हमारे माजत के साथ खुद समेत मैं बात कर रही हूँ, हमारे असातिज़ा कराम और हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े, हम भी मसरूफ हो गए या हमने खुद को खुद ही कर लिया। हाँ, उसकी वजह से हमने बच्चों को अपने हाथ में छोड़ दिया। हमारे पास टाइम नहीं है सुनने का। बिल्कुल हम जब नहीं सुनते, उनके पास कहने का टाइम नहीं है, तो हम जो माहौल घर में क्रिएट कर सकते थे ना, वो हमने खुद ही खत्म कर दिया। अच्छा, अब ये बात का हैरानगी होती है कि बच्चे फेसबुक पे ऐसे ऐसे पोस्टर लगा रहे होते हैं अपने जज्बात का इजहार, और कभी तो इतने वो बेचारे परेशान बैठे होते हैं, मतलब हैरान होता है कि इसकी एज देखें और इसके स्टेटस देखें। आपने अभी जो बात की थी ना नेगेटिविटी की, उसकी वजह यही है। और आपने अगर अभी आपने बात की पोस्ट ऐसी सी क्या क्या जहानत हमें नजर आ रही होती है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा जीनियस उनकी पोस्ट होती है। बाज दफा आपको मायूसी जो है बिल्कुल। उसका एलिमेंट बहुत उसका ज्यादा element मिलता है। ऐसी है। आप जो खुदकुशियां देख रहे हैं ऐसे ही या है। बच्चे बच्चियों की आप खराबियां देख रहे हैं, वजह यह है कि वो अपने घरों और उस्तादों से दूर हो गए हैं। ऐसे जब 13-15 साल का बच्चा ऐसी शायरी पोस्ट कर रहा है तो वालिदैन को अंदाजा हो जाए कि मेरा बच्चा आजकल क्या सोच रहा है। उसके पास टाइम नहीं है ना, हाँ। देखने का नहीं है, पूछने का नहीं है, सोचने का नहीं है। अच्छा, बीइंग पेरेंट अगर मैं भी कहूँ, एक तो ये कि सच बात है कि जब कोविड आया हमारे लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी जिसे हमने अपना बनाया या बन गई, वो ये था कि हमने अपने बच्चे के हाथ में ये दे दिया। हाँ, वो और लास्ट हमने में उसको अपने नेट online भी ऑन education के लिए करके दे आपने- दिया कि बिल्कुल। भाई उसने अपनी ऑनलाइन क्लास लेनी है। अब वो बच्चा स्कूल लाइफ का है, उसको नहीं पता। वैसे ही हमें सोशल मीडिया की एजुकेशन नहीं है, हमारे पास तालीम नहीं है, हमें नहीं पता कि सोशल मीडिया को कैसे यूज करना था। हमारे बड़े बड़ों को नहीं पता होता, बिल्कुल। ठीक है। हमारे चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूशंस के कोई ऐसे। भी हो, वो खुद ये शिकायत करे, तो हमारे बच्चों को क्या पता, जिनको वैसी हमारे यहाँ तरबियत का वैसी फुकदान था। अब क्योंकि एक माजत के साथ अभी आपको बहुत वाक़यात मिल रहे हैं, बहुत रोज तकलीफ दे होती है वाक़यात ये आ जो रहे हैं। आपको तशद्दुद के, जिस्मानी तशद्दुद के और बहुत से ऐसे हमें मिल रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये भी है। माजत मैंने इसी लफ्ज़ बोला कि मैंने एक ऐसे जो ख़ास इंस्टीट्यूशन है हमारा स्पेशल ब्रांच का, मैंने उनसे बात की क्योंकि ऐसे केसेस आ रहे हैं जिस तरह बच्चे बच्चियों का ग्रुप है। मैं ज़रूर अपने बच्चियों को इस प्लेटफॉर्म से ये बात करना चाहूँगी कि देखें, बच्चियों का जो ग्रुप बन जाता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वो समझती हैं हम सब जो अनम, अरीशा, अरीबा, ये सारी लड़कियों के नाम है ना, ये सब लड़कियां हैं। लेकिन उनमें लड़के लड़कियों के नाम के साथ ऐड हो जाते हैं, फेक आईडीज का ऐड हो जाते हैं। फिर वो बच्चियां अपने स्टेटस पे या ऐसी तस्वीरें वो लगा लेती हैं जो उन बच्चों तक पहुंच जाते हैं। मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, 3 मुसलसल केस आना शुरू हुए। मैं बहुत परेशान हूं कि हुआ क्या है। तभी मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा आपको मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि डॉक्टर है, कोई इंजीनियर बच्ची बन रही है, लेकिन जो उसको मिसयूज कर रहा है वो ऐसा शख्स होगा जिसको मुंह धोने का नहीं पता, लेकिन उसके पास क्योंकि ये गैजेट आ गया, मोबाइल आ गया, उसको ऐसे ऐसे ऐप्स यूज करने आ गए हैं जहां से वो फीमेल वॉइस में बात कर लेता। एक तो सबसे ज्यादा मैं जरूर शिकवा करना चाहूंगी, हमारे वो बटन वाले मोबाइल होंगे लेकिन उसमें ये जरूर ऑप्शन मौजूद है कि इसको फीमेल वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं, आप चाइल्ड वॉइस में कैसे कर लेते हैं। ये करने की जरूरत क्या थी? ठीक है, एक तो ये ठीक है, अगर हम ये मान लें कि ये चीजें हैं, वहां पे बच्चियों को तरबियत देना है। अब वही बात जो हम पुरानी वैसे पहले बात कर रहे थे कि अगर माएँ उनसे डिस्कस करेंगी, हाँ। देखिए माँ बाप, उस्ताद, बड़े बहन भाई चेहरे से पढ़ लेते हैं। उसके अलावा अगर बच्चा मोबाइल छुपा रहा है या फीमेल मोबाइल छुपा रही है तो कोई इशू अच्छा, है? वो छुपाने के अलावा बच्चे को पता ही नहीं ना कि कर हो क्या रहा है मेरे साथ।
جب اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب اس کو دھمکی آئی، اب جیسے میرے پاس کیس آئے، اب وہ بچیاں آئی میرے پاس، کہتے ہیں میم وہ تو ہمیں دھمکی آ رہی ہے کہ ہم آپ کی تصویریں جو ہیں وہ وائرل کر لیں گے، فیس بک پہ لگا لیں گے. اچھا، ایک تصویر کے بعد مزید ڈیمانڈ ہوتی ہے. ڈیمانڈ ہوتی ہے، پھر وہ پھر یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اچھا آپ فلاں میرا میل فرینڈ ہے، اس کے ساتھ آپ فرینڈ شپ کریں، ورنہ ہم یہ کر لیں گے. تو پھر اس میں ہم بچیوں کو، بے شک یہ میں اب چند بچیوں کو بتا سکتی ہوں، آپ کے پلیٹ فارم سے بہت ساری بچیاں جو کالج یونیورسٹیز میں بیٹھی ہیں، پڑھتی ہیں، وہ بچیاں بہت بہت اچھی ہیں. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ وہ نیگیٹو کسی کمپنی میں آ گئی ہیں ان کی کوئی، لیکن کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح کے جو ہمارا گروپ ہے اس میں کون کون شامل ہو سکتا ہے. اس میں پھر وہی بات ہے جو اساتذہ کرام ہیں کیونکہ جس طرح سے یہ فرما رہے تھے ماشاءاللہ سے کہ یہ ان کی تربیت کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو یہ ریمائنڈ کروانا ضروری ہے کہ دیکھیں نصابی تعلیم کو علم ہم نہیں کہتے. ہاں، نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو باقی تعلیم ہے غیر نصابی جس طرح کی ان کا ہونا لازمی ہے. ہم اس پہ مزید بھی آپ سے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ایجوکیشن جاری ہے. سر، میڈم نے بھی بات کی کہ صرف نصاب اور ہم نے جو آپ نے تربیت کا بھی فیکٹر کی بات کی، تربیت ٹیچرز کو اس میں کیا رول ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اسٹوڈنٹ اب ٹیچر کے پاس تقریباً 7 سے 8 گھنٹے روزانہ کنزیوم کرتے ہیں. اب والدین کے پاس روزانہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، اس کے علاوہ جاب پہ بھی جانا ہے، سونا بھی ہے. لیکن ٹیچر کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ بچے کو انگیج کر کے رکھتا ہے. ٹیچر کو کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہا. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ والدین اور ٹیچرز کو مل کے یہ ذمہ داری دونوں کا اعتماد. بالکل، وہ یہ بہانہ میرا خیال میں ایکسکیوز نہیں لینا چاہیے کہ ہم مصروف ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو پیرنٹنگ ہے یہ بھی ایک آرٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور بڑی چیزیں آ گئی ہیں اس میں، تو اس کے پیرنٹس کی بھی ٹریننگ ہے، تو اس میں بھی یہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے. ٹیچر اسکول جو ہے وہ پیرنٹس کو بھی انگیج کرے. جیسے آپ نے کہا 5 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے بچہ تو انگیج ہو رہا ہے، پیرنٹس کو بھی کریں، ان کے ساتھ تواتر سے میٹنگ ہوتی تھی، لیکن اب کووڈ کی وجہ سے جیسے آپ نے بتایا کہ یہ موبائل فون فار انسٹنس، تو اس حوالے سے پیرنٹنگ ہونی چاہیے کہ کیسے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے مثبت طریقے سے اس گیجٹ کو یوز کر رہے ہیں. اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو تعلیمی مقصد کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جائے. اور اس کا مزے کی بات یہ ہے کہ ٹیچرز کو بھی نہیں پتا. میں اپنی بات کروں، جب سے یہ کووڈ آیا ہے اور آن لائن ایجوکیشن کا آیا ہے تو مجھے ٹائم لگا ہے سیکھنے کے لیے. اس طرف آنے میں کمپیوٹر یوز کرتا تھا زیادہ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں اب آن لائن موجود ہیں جو ایجوکیشنل پرپز سے یوز ہو سکتی ہیں. تو میں نے انہیں باقاعدہ سیکھا کہ گوگل میٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، جو مائکروسافٹ ٹیم کیا ہے. بالکل، تو اس کو میں نے سیکھا اور سیکھنی پڑتی ہے. سیکھنی پڑتی ہے. اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. اور ہم جو آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو کم عمر ہماری فیمیلز ہیں وہ اس حوالے سے جو موبائل کا استعمال کرتی ہیں، اس کے بعد پھر انہیں جن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. تربیت اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگاہی ہے وہ ہم نے کس طرح سے دینی ہے، تو اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے تعلیم و تربیت کی، ہم نے بات کی اسپورٹس کی بات کی، اس کے ساتھ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اور آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے مس یوز کی وجہ سے آج کل جو فیمیلز کو، اس کے ساتھ بچوں کو جن پرابلم کا سامنا آئے روز اس طرح کے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جن کو بیان کرنا بھی کرتے ہوئے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس پر ہم تفصیلی بات کریں. اس سے پہلے جو ہم نے اسپورٹس کے حوالے سے بات کی، ذکر یونیورسٹی کی بات کریں تو آج کل وہاں پر الیکشن کی جو اکیڈمک سٹاف کے الیکشن ہے اس کی دوبارہ سے تیاریاں ہو رہی ہیں. تو ہم ذرا پروفیسر ڈاکٹر رانا دلشاد سے جانتے ہیں کہ کب تک الیکشن متوقع ہے اور اس بار ان کے کیا خدشات ہیں. پروفیسر صاحب، جس طرح الیکشن کل ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے تو اس بار کیا تیاری ہیں، الیکشن کب ہونے جا رہا ہے، اور سیکنڈ اس بار کیا رجحان دیکھیں گے ذرا اس کے وجہ سے ایکسپیرینس؟ سیاست کے بارے میں عام طور پر ہم منفی رویہ رکھتے ہیں کہ یا منفی تصور رکھتے ہیں، لیکن یہ بہت بہتر بھی ہے. باقاعدہ الیکشن ہوگا؟ ہاں جی، ٹیچرز ایسوسیشن کا جو اس بار باقاعدہ الیکشن ہوگا؟ پہلے بھی ہوتا ہے بعض کا تو ڈیلے فیکٹر. BZU میں جو ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے کورونا کی وجہ سے، لیکن اگلے منتھ جو ہے وہ الیکشن ہے. تو میرا اپنا خیال ہے یہ بڑا پازیٹیو ہے. زیادہ تر ون ایجنڈا ہے جس پہ مختلف جو گروپس، بلکہ BZU میں 2 بڑے گروپس ہیں تو اس پہ وہ اپنا الیکشن فائٹ کرتے ہیں یا لڑتے ہیں. وہ ہے ٹیچرز کی پروموشن اور سلیکشن. اگر
इसे पॉजिटिवली लिया जाए तो इसके लिए जो है ये जो एसोसिएशन होती है वो बात कंट्रीब्यूट करती का है। ये भी डिमांड के गिला आता है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि एकेडमिक स्टाफ हमसे गैर जरूरी डिमांड्स कर रही है। वो हर बार आ जाते हैं प्रोफेसर, आके घेराव कर लेते हैं, एहतजाज की तो धमकी देते ये हैं। बिल्कुल सही है। यूनिवर्सिटी का एक बड़ा मसला टीचर्स की सिलेक्शन और प्रमोशन, मुझे टाइम दे मैं थोड़ा बताता हूँ। गवर्नमेंट साइड में, कॉलेज साइड में क्या होता है कि आप एक केडर में हैं, एक पोजीशन पर हैं, एक ख़ास अरसे के बाद जब आप एक्सपीरियंस ले जाते हैं आप अगले में चले जाते हैं। आप लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, इस तरह से ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे चलता रहता है। बिल्कुल। लेकिन यूनिवर्सिटी टीचर्स के साथ ऐसा है कि इनका क्लियर करियर पाथ नहीं है। ठीक है। आप एक दफ़ा एंटर हो गए, सिलेक्शन हो गई, अब दोबारा फिर आपको अगले ग्रेड के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, नए जो मेयार है आपकी सिलेक्शन या प्रमोशन का उसको पूरा करना पड़ेगा। तो ज़्यादा सियासत इस बात पे होती है कि आपकी सीट्स जो है आप वेट कर रहे होते हैं, बाजू का आप 10-10 साल वेट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो है। हाँ, एक ये ठीक है। अच्छा, अब होना क्या चाहिए, अगर नेगेटिविटी है इसमें, अगर टीचर्स की इसमें, तो अगर ये करियर पाथ क्लियर कर दिया जाए, ऐसे ही कर दिया जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं कि आपके 10 साल के बाद अगर आपने प्रमोट होना है और आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती हैं, पेपर्स हैं आपके, रिसर्च पेपर्स हैं, तो फिर आपको मैं इसी बात ऑटोमेटिकली आपको आगे बात करना चाह रहा था कि वो ये कहते हैं जब एकेडमिक स्टाफ आ जाती है उसके बाद जो मेन सीटें होती हैं वो अपने पास रखना चाहते हैं, उसके बाद जो रिसर्च पेपर के हवाले से होती है, आपकी पब्लिश होने होते हैं, उसमें अपने लोगों को नवाजा जाता है, उस मेयार को नहीं देखा जाता। तो ये जो चीज़ है इनको हम किस तरह? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ केसेस हो सकते हैं ऐसे, लेकिन ज़्यादातर यही है कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मुझे कोई 28 साल हो गए हैं, ठीक है। अगर मैं गवर्नमेंट साइड में होता तो ज़्यादा पहले, मैं इस वक्त 21वें ग्रेड में हूँ, तो शायद मैं पहले 21वें ग्रेड में आ जाता। तो ज़्यादातर असातिज़ा की जो सिलेक्शन और प्रमोशन है ना, उसमें मसाइल है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, अगर वो पॉलिटिक्स को, टीचर्स की पॉलिटिक्स और लॉबिंग को कम करना चाहती है गवर्नमेंट, तो इस पे फोकस पहले तो हाँ, उनके लिए करियर पाथ दे दें कि 10 साल बाद आपने अगले ग्रेड में चले जाएं, फिर अगले ग्रेड, तो इससे यह है कि टीचर्स पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी। नहीं, खत्म ना हो, उसमें जो असर है वो कम हो जाएगा। एक और चीज़ जो कही जाती है यूनिवर्सिटी के माहौल के हवाले से कि स्टूडेंट्स को गैर ज़रूरी जो स्टूडेंट तंजीमें होती हैं, बाज़ का ये कहा जाता है कि टीचर वो खुद सपोर्ट करते हैं, टीचर्स के कुछ ग्रुप्स हैं वो उनको कहते हैं कि यार हम आपके साथ हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है और क्या ये करना चाहिए टीचर्स को? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। हाँ, ये किसी हद तक हो सकता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वजह यही है कि हम अपने कुछ मखसूस जो मफादात हैं उनके लिए इसको करते हैं। अगर स्टूडेंट्स की सहूलियात लेने के लिए, उनके लिए मराहत लेने के लिए अगर पॉलिटिक्स हो तो बेहतर है। और उनके लिए मुख्तलिफ फोरम्स हों, फन फेयर्स हों, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, अगर स्टूडेंट्स जो यूनियन समझ लें अगर उसके वो बहाल हो जाती है, तो अगर उसके लिए काम करें तो बेहतर है। नहीं, तो बहाल होंगी तब वो सेक्टर बनेगा। हम इस पर मजीद भी बात करेंगे। जिससे हम मेरी बलोच साहब से बात कर रहे थे सोशल मीडिया के मिसयूज़ के वजह से। मैडम, आपने हम ब्रेक से पहले जब बात कर रहे थे कि आजकल इस हवाले से बच्चों को नहीं पता होता कि हम किससे बात कर रही हैं। आपने बात की कि आजकल इतनी ज़्यादा वॉइस चेंजर आ गई हैं कि मालूम नहीं होता, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम में अब ये सिलसिला चल रहा है। इसके जो बात का हैरेसमेंट का भी उनको निशाना बनना पड़ता है। कितने केसेस आपके सामने आए और उसका हल क्या है? अगर ये इस सिलसिला शुरू हो गया है तो क्या वो अब उसका शिकार होती रहे? इसका हल क्या है? जो हमने स्टार्ट में बात की ना, उससे जुड़ी हुई है। देखिए, एक तो असातिज़ा कराम जो हैं वो अपने लेक्चर्स में ज़रूरी नहीं है कि उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड है या नहीं है, क्योंकि ये अब आपकी डेली लाइफ का एक हिस्सा है, तो वो अपने लेक्चर में इस बात को या इस इश्यू को बयान कर सकते हैं, करना चाहिए, वो बताएं। क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो रिश्ता है वो बड़ा प्यारा रिश्ता होता है, वो बड़ा बहुत कुछ उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो उस्ताद है वो सामने जो की रो में जो बच्चा बैठा है वो उसी से ही क्लोज हो, वो जो लास्ट में बच्चा या बच्ची बैठी है उससे भी डिस्कस करना होता है। वो अब ये बिल्कुल इनकी बात भी बिल्कुल सही है कि असातिज़ा कराम के सामने कुछ 10-15 बच्चे तो नहीं होते, उनके सामने जब ये जो यूनिवर्सिटी क्लासेस के बच्चे होते हैं वो तो तकरीबन अच्छी खासी तादाद में बैठे होते हैं, हर बच्चे तक उनकी एक्सेस नहीं हो सकती, लेकिन जो उनकी आवाज़ पहुँच रही है वो
हर कान तक पहुंच रही है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी ये सच होता है। हम लोग भी आखिर यूनिवर्सिटी पीरियड देख के आए हैं कि उसमें बच्चा मोबाइल यूज कर रहा होता है, सर पढ़ा रहे होते हैं, मैम पढ़ा रही होती है, उसे तवज्जो है कि नहीं, लेकिन जो एक उस्ताद अपने बच्चे के दिल तक पहुंचना का फन जानता है ना, उसके वो उसमें अपनी बात भी पहुंचा देता है। मोबाइल कम यूज पहली होता है, बात एक तो वो कर लेता है। दूसरा, आप करिकुलम की बात कर रहे थे। एक तो करिकुलम जो हमारा है ना, जो हम जिससे हाथ लगा सकते हैं, यानी जो हमारा टेक्स्ट है जो हमारे हाथ में, इसमें इस बारे में बहुत कुछ नॉलेज इसको होनी तो चाहिए। काफी ज्यादा चेंज होने की जरूरत है, बहुत चेंज होने की जरूरत है। अब तो बहुत कुछ हो रहा है और उसमें भी बहुत सी अब वो तो इश्यूज कह रहे कि हो हम- रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये बहुत सी चीजें हैं। थर्डली, जो पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, वहां पे एक काम जरूरी है कि जो पासवर्ड्स हैं वो कम से कम फादर को नहीं, मदर को जरूर पता होना मेन चाहिए। चीज। मैंने ये किया बीइंग मदर कि मैंने, बेशक मेरी बेटी या बेटा मुझे नहीं बताना चाहती, मम्मा आपको क्या मुझ पर भरोसा नहीं, आप क्या मुझ पर एक फैक्टर ये भी आजकल बच्चे कहते हैं आपको मुझ पर अभी ट्रस्ट नहीं है। हाँ जी, Emotionally अभी एक blackmail बात हुई थी ना कि पेरेंटिंग की भी कुछ अब चेंजिंग आनी चाहिए। तो उसका ये तरीका है कि माँ बाप भी अपने अंदर ये चेंज लाएं। जरूरी नहीं है हर वक्त डांटना, या उनके साथ उनके लेवल से बात करें, उनके दोस्तों की बात करें, आप उनकी सहेलियों की बात करें, अच्छा उनके इंटरेस्ट जिसमें है उस टॉपिक पे बात करें। मेरे बेटे को टिकटॉक का शौक हुआ, मैंने टिकटॉक पे बात करनी शुरू कर दी, मैंने उसको टिप्स देने शुरू कर दी, बेटा तुम यूं कर लो, यूं तस्वीर खिंचवा गई। उसे हुआ कि माँ मेरी बात सुन रही है। अब जब वो मुझसे बात करेगा तो वो अपनी हर चीज मुझसे करेगा, और जब वो शेयर करेगा तो मैं उसकी जो मिस्टेक है उसको मैं पॉइंट आउट कर लूंगी और उसको समझा दूंगी। इसी तरह बेटी के साथ भी है, जब मैं उसे ये सब शेयर करूंगी वो मुझसे शेयर करेगी, मुझसे फ्रेंडशिप में लाएगी। अगर वो तो आपसे एतमाद नहीं हो तो किसी और के पास तो जाएगी, किसी और से शेयर मेरे पास करेगी। बहुत से केसेस का मुझे बड़ा फायदा इससे बड़ा हुआ। मैं जब अपनी बेटे से बात करने लगी तो वो जो हम कहते हैं ना काउंसलिंग की बात, वो काउंसलिंग जरूरी नहीं कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में करें, वो काउंसलिंग आपको अपने घर से भी जरूरी है। आप बिल्कुल बुजुर्गों को भी लाजमी। सुने, आप बच्चों को भी सुने, आप एक दूसरे को भी सुने। मैंने वो जब अपनी बच्ची से सुना तब मुझे ये इश्यूज और ज्यादा मेरे सामने आए कि उनको क्लासेस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी सहेलियों को क्या इश्यूज हो सकते हैं। हैरेसमेंट की जो बात की है, ये बच्चे बच्चियों के साथ ऐसा है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक ब्लू व्हील गेम थी, अगर मैं वेल कुछ ऐसा कोई नाम था, ये मुख्तलिफ और गेम्स थी। वो क्यों इतनी ज्यादा बच्चों में हो गई थी? क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि ये किस गेम्स को खेल रहे हैं। अच्छा वो बच्चे बैठे हैं, अच्छा वो बच्चे क्या खेल रहे हैं, किधर कंप्यूटर रखा हुआ है। हमेशा हम कहते हैं कि ऐसी जगह पे बच्चों के ऐसे ये गैजेट्स होने चाहिए। अब तो मोबाइल आ गया, पहले तो सिर्फ कंप्यूटर था, जो आपकी राहदरी हो, यानी जहाँ पे घर का हर फर्द गुजरता हो, वो लाउंज हो, जो भी हो। अब अगर वो है भी किसी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ दोस्त बैठे हैं, तो माँ जो होती है वो हर जगह घुस जाती है किसी भी बहाने से, कपड़े उठाने के बहाने, किसी चीज को भी करने के, तो वो वहां पहुंचे, वो डायरेक्ट देखे। और ये बहुत काम करना है, जिसे कहते हैं ना, बच्चे को हम कहते हैं कि देखो बेटा अपने ऊपर काम करो, इस तरह माँ बाप को भी अपने ऊपर काम करना है, उस्ताद को भी अपने ऊपर काम करना है कि कैसे मैं बच्चे के माइंड तक पहुंच सकती हूँ। और ये जो चीज है, देखें अब गांव में क्या, झोंपड़ी में क्या, जो शख्स, जिससे मैंने पहले बात की, जिस शख्स को ये नहीं पता कि उसने बात कैसे करनी, लेकिन उसको ये पता है कि मैंने गैजेट कैसे यूज करना है। आप अंदाजा लगाएं, मैं माजरत के साथ उस जगह का भी नाम लेना चाहूंगी, यहाँ पे हमारी है ई लाइब्रेरी है। ई लाइब्रेरी से पहले झोंपड़ियां से आती हैं, अगर आपको तो मुझसे ज्यादा पता होगा। मैं वहाँ पे किसी काम से गई तो मैंने इतने छोटे बच्चे, शायद 9-8 साल के बच्चे होंगे, और वो गैजेट्स उठा के बैठे और इतनी, मतलब वो ना काबिल बयान ऐसी चीजें देख रहे हैं। अब हम उधर कहें कि वो जो माएँ बैठी हुई हैं, वो तो घरों में काम करती हैं, वो तो इसी बात पे खुश हैं, भाई बच्चा मोबाइल उठा के बैठा हुआ है, उसने कमाई करके दे दिया। लेकिन हमें देखना होगा कि बच्चे देख के आ रहे हैं, बच्चे यूज क्या रहे हैं, बच्चे सर्च क्या कर रहे हैं, हमें सारा कुछ इस पे मॉनिटर करना होगा। तो इसके हवाले से वालिदैन, आपने पहले भी बात की, वालिदैन का रोल अदा करना होगा। अब ये सबके सामने हालात हैं कि इस वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, और वालिदैन और टीचर्स और माशरा हर जगह की कमी नजर आ रही है। बेहतर किस तरह बना सकते हैं? मैडम ने बड़ी अच्छी बात की। एक तो टीचर्स के हवाले से मैं थोड़ी दरमियान में भी रह गई थी ये बात, कि टीचर को, एक तो जो मैडम ने बड़ी अच्छी, मैं इसकी तौसीक करूँगा कि टीचर को एक तो ये अखलाकी मौज़ूआत और जो समाजी मौज़ूआत है, जो प्रॉब्लम्स हैं, इस पे क्लास में बात करनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये कि बात करें, इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। टीचर को वालिदैन के बाद दिया गया है, तो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो इस हवाले से अखलाकी मौज़ूआत, जिसको कैरेक्टर बिल्डिंग कह लें, बिहेवियर मॉडिफिकेशन कह लें, जो भी कह लें, इस पे। दूसरा जो उससे ज़्यादा हम बात है वो ये है कि अब टीचर को भी बिहेवियर मॉडल उनके सामने पेश करना होगा। सिर्फ बात करने से तो वो दिल तक नहीं पहुँचता। बिल्कुल।
اگر وہ ایکڈیمک آنیسٹی کی بات کرتے ہیں کہ آپ ایمانداری سے پڑھیں، چیٹنگ نہ کریں، تو یہی ایکڈیمک آنیسٹی ٹیچر میں بھی نظر آئے. بالکل. وہ ٹائم پر کلاس میں آئے، اور جو کلاس کا ٹائم ہے جتنا اس نے وقت دینا ہے اسٹوڈنٹس کو وہ دے. اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنا ہے تو انگیج ہوں، اور وہ واقعی انگیج ہوں، بالکل. ایکڈیمک ٹاسک میں ہوں، نہ کہ وہ گپ شپ. اچھا، ٹیچر کے رول کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے ایریا میں ہمارے ایک ٹیچر ہیں سر شعیب خان. ان کو ہم نے دیکھا کہ اس نے پورے ایریا سے جھگڑے مول لیے صرف اس بیس پہ کہ اگر بچے کو کسی نے تھریٹ کیا، بچے کو کسی نے ہراس کرنے کی کوشش کی تو وہ کھل کے سامنے آئے، اور بچے اپنے والدین کی بجائے اس ٹیچر سے سر شعیب سے وہ شیئر کرتے ہیں. وہ ہمارے پورے ایریا میں وہ سر پورے مشہور ہیں کہ ان کی ایج 35 کے پلس ہے کے قریب ہے، لیکن ان سے وہ شیئر کرتے ہیں. وہ ان کے ہر چاہے وہ ان کے ساتھ پولیس پہ بھی گئے کہ ہمارے بچوں کو یہ ایشوز ہیں. ہمارے ایسے بھی واقعات ہوئے کہ بچے اسکول سے گھر جا رہے ہیں، رستے میں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے وہ کھل کے سامنے ہے. تو اس طرح ٹیچر کو بھی کاؤنسلنگ وہ کرے. اور یہ انہوں نے، ان کو میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں شعیب صاحب کو، جو آپ نے بتایا کہ اس کے لیے انہوں نے پین لیا ہوگا. بالکل. اپنے رویے میں وہ چیزیں لائے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہاں، شیئر کرتے ہیں اور ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹرسٹ بلڈنگ جو ریلیشن شپ ہے وہ قائم کرنا. لیکن ہم تمام طرح ایسے جتنے بھی اساتذہ ہیں جو اپنے بچوں کا اس طرح خیال کرتے ہیں، اس طرح تربیت کرتے ہیں، ان سب کو ہم خیر تحسین پیش کرتے ہیں. اور مزید جتنے بھی استاد ہیں وہ ہمارے لیے مقدم ہیں، ہم ان کا عزت کرتے ہیں. تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے، تبھی ہمارے جو معاشرہ ہے، جو ہمارے بچے جو آگے آ رہے ہیں، تو ان کو اچھی تربیت مل سکتی ہے. ہم بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو مزید اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہ کے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے، تربیت کی بات کی تھی بچوں کے حوالے سے، جو ہماری فیمیلز ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ورکنگ ہونی چاہیے. اور سپورٹس کو بھی، آپ جس طرح ہم سپورٹ ڈپارٹمنٹ بھی کو بھی ڈسکس کیا، تو فیمیل میں سپورٹس کا کتنا رجحان ہے، کس طرح سے ان کو موقع دیا جا سکتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. دلشاد صاحب، جس طرح ہماری فیمیلز ہیں، بہت کم کہا جاتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں فیمیلز کو موقع ملتا ہے آگے آنے کا سپورٹس کے میدان میں. ہمارا ڈپارٹمنٹ کیا کرے، کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ ایڈمیشن کے حوالے سے بھی ایشوز آتے ہیں ان کو، گراؤنڈز کے حوالے سے بھی، ان کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی پرابلم آتے ہیں، تو کس طرح بہتر بنائیں؟ اگر میں BZU کی بات کروں، اسپورٹس سائنس ڈپارٹمنٹ جو جس کا میں انچارج ہوں، چیئرمین ہوں، تو اچھی بات یہ ہے کہ یہاں فیمیل جو انرولمنٹ ہے وہ 50% ہے. اچھا، یہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ لڑکوں کے لیے ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ BZU کو ہمارے ڈپارٹمنٹ سے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں مختلف فورم پر. انٹر کالجیٹ مقابلے ہوئے ہیں تو اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں اور ون بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ انٹر یونیورسٹیز مقابلوں میں BZU کو خواتین اور یہ ہمارے، اگر ہم آپ سے سپورٹ ٹیم فرسٹ کے کسی مقابلے کے لینا چاہیں فیمیل کی، تو ہمارے پاس ہاں، یہ ہو سکتا ہے. ایک میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، ہماری ایک اسٹوڈنٹس ہیں رخسار گل. ٹھیک ہے. وہ MSc کی اسٹوڈنٹس ہیں. تو حال ہی میں ماس ریسلنگ میں انہوں نے رومینیا میں گولڈ میڈل حاصل کیا. اس میں بہت سے ممالک تھے، یورپین ممالک بھی تھے، تو انہوں نے ماس ریسلنگ. اس کے علاوہ جوڈو کے بھی اچھے کھلاڑی ہیں، نیشنل ونر ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں اس کی ماس ریسلنگ. ٹھیک ہے. تو یہ تو کافی ذات کی بات ہے. یہ ساؤتھ پنجاب کے لیے، ملتان کے لیے ہماری اسٹوڈنٹ فیمیل وہ دنیا میں جا کے نام بنا رہی ہے پاکستان کا. تو اس میں اگر میں میں انٹرپٹ کیا، BZU میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یا بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اسپورٹس، لیکن جو آخر پرائیویٹ اسکولس کی تو بہار ہے ہمارے پورے صرف ملتان کی بات کریں، جنوبی پنجاب تو اور ایک واسٹ ایریا ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ کوئی اسپورٹس ڈے نہیں ہوتا. اس سے بھی ڈسکس ہے کہ اس میں جو بورڈ آفس ہے کردار ادا کرنا ہوگا HEC کو، کہ انہوں نے اتنی سی جگہ پہ ادارہ قائم کر دیا، وہاں پہ تو گراؤنڈ بھی نہیں ہے. وہاں گراؤنڈ تو دیکھیں، بزم ادب میں ایک نام لیا جاتا تھا جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. آپ کا یہ جو آپ کا 14 اگست منایا جاتا تھا، اب تو وہ بھی ختم ہونے شروع ہو گیا. 6 سپٹمبر ختم ہو گیا. گرلز گائیڈ کے کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے، WNCC کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. یہ چیزیں ہوتی تھیں. اچھا، میں نے اپنی لائف میں ہاکی اور فلاں مختلف گیمز کھیلی، میری بیٹی نے نہیں کھیلی. ٹھیک ہے. اور وہ ہوتے 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 اب وہ کالج پہ پہنچ گئی. اب اس نے پورے 10 سال نہیں کھیلا. تو وہ لے رہے ہوتے ہیں، فیسیں لے رہے ہیں، ان کی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو توجہ ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، اس کا فقدان ہے. بالکل. یہ کاروبار بن گئے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں. دیکھیں آپ، اچھا اب ہم کووڈ کی بات کر رہے ہیں، ہم 2019 سے کووڈ کو فیس کر رہے ہیں. بچے اگر کرکٹ کی آپ بات کر رہے تھے، کرکٹ بچے باہر کھیلنے جایا کرتے تھے کسی کووڈ میں،
नहीं जा सकते, वो बाहर नहीं गए, गैजेट्स हमने पकड़ा दिए, अब वो घर में भी नहीं खेलते। लूडो एक घर में का एक इंडोर गेम तो यही एक हुआ करती थी। इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, वो घर में करनी चाहिए ताकि किसी बहाने घर में आपस में एक दूसरे से हो कोऑर्डिनेशन हो, लेकिन स्कूलों में जरूर स्टार्ट होनी चाहिए, कॉलेजेस में स्टार्ट होनी चाहिए। स्कूलों के हवाले से वुमेन पार्टिसिपेशन के हवाले से स्कूल्स जो सवाल था आपका, पहले मैं उसका जवाब दे दूं। दिलचस्प बात यह है कि हमारे यहाँ वैसे तो लिटरेसी रेट कम है, 58% है आपको ऐसी ही। ये 8 सितंबर को लिटरेसी डे गुजरा है, तो हमें बड़ी ज़रूरत है कि इसको बढ़ाने के लिए, और फीमेल लिटरेसी रेट तो इससे भी कम तो है। साउथ में तो वैसे हाँ, इसमें काफी साउथ पंजाब तो काफ़ी पसमानदा है, तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ भी सोचना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, हायर एजुकेशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, हायर एजुकेशन में वुमेन पार्टिसिपेशन, फीमेल पार्टिसिपेशन बराबर है लड़कों की। अच्छा, वहाँ पे कुछ ऐसे शोबे हैं, कुछ ऐसे शोबे हैं जिसमें फीमेल पार्टिसिपेशन लड़कों से भी ज्यादा है। लेकिन एक इश्यूज आता है, वो ये आता है, वो ये कहते हैं हमें अच्छे कोचेस नहीं मिलते, मेल कोचेस होते हैं। सेकंड, जो ग्राउंड होता है वहाँ पर मेल मौजूद होते हैं तो हम प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो इन्वायरमेंट है उसका होना कितना लाजमी है कि हम अगर उनको बेहतर माहौल नहीं दे सकते जहाँ पे वो खुल के अपना परफॉर्मेंस दे सकें, तो फिर किस तरह से वो, जैसे मैडम ने कहा, ये बिल्कुल सही है। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके पास तो शायद एकेडमिक फैसिलिटीज भी महदूद हैं। हाँ, एक घर में कितने चीजें हो सकती हैं, तो ग्राउंड तो दूर की बात कर दें। तो अब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हमने पहले भी बात की थी कि गवर्नमेंट स्कूल में भी ये कल्चर अब खत्म हो रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, स्काउटिंग का, गर्ल गाइड का, इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट होने हैं, डिवीजन लेवल पे टूर्नामेंट हैं, पहले टीमें तैयार होती थी, इंचार्जेस होते थे, बिल्कुल ऐसे जो हैं, हम भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं। तो वो उसकी तरफ थोड़ा सा ये है कि ये जो प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, वो नहीं है। हाँ, तरजीह कैसे बन सकती है हुकूमत? चीज़ें मैं जरूर बात करना चाहूँगी क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है। पहली बात तो ये कि जो सुबह असेंबली का कॉन्सेप्ट था ना, इन तमाम गेम से पहले उसका जिक्र करना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे है। वरना मुझे भी याद है कि हम बहुत असेंबली तकलीफ में होती जाते थे और है, मैं हैरान हो रही हूँ, असेंबली का खत्म हो चुकी है। हम कॉलेजेस में गए, हम यूनिवर्सिटीज में गए, हमने असेंबली, चाहे हम लोग बाकायदा स्कूल की तरह नहीं खड़े, लेकिन मैं पता था अब नेशनल एंथम का टाइम है, हम सब खड़े हो गए। अब तिलावत हो रही है, अब कोई ना कोई नात पढ़ेगा, अब कोई किसी लब पे आती, हम एक अल्लामा इकबाल की नज़म पढ़ते थे, वो जो हमारा दिल उस वक्त गर्म जोशी से होता था वो थे। अब आप कहते हैं कि हमारे बच्चों को अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, या हमारे बच्चों को अपने नेशनल हीरो का पता नहीं है, उसको फलां किसी ड्रामे टीवी का हीरो सिखाने की। देखें, बहुत सी चीजें बिलाल बताने से नहीं होती, बहुत सी चीजें दिखाने से। देखिए, हम बात कर रहे थे कि जो हमारा ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस पे जो हम ड्रामा या कोई भी कमर्शियल दिखाते हैं, हम अगर एक हीरो को सिगरेट पी के और बड़ा स्टाइलिश सा दिखाएंगे तो बच्चा तो ये समझेगा जो हीरो होता है, जो स्टाइलिश होता है, वो सिगरेट पीता है। अब आप उसको 1000 दफा कहो तुमने ड्रग नहीं लेनी, तुमने ये नहीं करना, तुमने शराब नहीं पीनी, तुम ये, जब आप दिखा ये रहे हैं तो उसने तो अपने आप को स्टाइलिश बनाना है ना, उसने तो अपने कंपनी में अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है ना। तो जो बहुत सी चीजें आप बताते नहीं है, आप दिखा के बच्चे सीख लेते हैं। और एक तो असेंबली का, ये तो अगर आपकी गवर्नमेंट बहुत सी चीजों पे जोर दे रही है तो असेंबली पे जोर दे। प्राइवेट स्कूलों में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जगह के अलावा दिलचस्प बात है कि वही इदारे जो है टॉप रैंक्ड हैं, जो ये को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ वालिदैन भी उन पे एतमाद करते हैं, वालिदैन कहते हैं कि वालिदैन भी पसंद कर रहे हैं, और शायद गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी एक बात, क्योंकि इससे रिलेटेड एक कभी बात हो रही थी कि उस्ताद तक बात पहुंचाना, अभी बहुत से हमारे जो मतलब बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे बहुत से ऐसे हैरेसमेंट के केसेस हुए। उसकी यह है कि एक तो हमें बच्चियों को ये बताना है, स्पेशली बच्चियों को, कि देखें उस्ताद करीम, उस्ताद मोहतरम के पास भी अगर आप जा रही हैं तो आप अकेली मत जाएं, आप अपने साथ ग्रुप लेके जाएं, 2-3 आपके साथ हों, वो आपके साथ जाएं, वहाँ बात करें। बिल्कुल, क्योंकि ये देखें, उस्ताद भी है, वो एक इंसान है, जब उसको आपकी कमजोरी पता चलती है तो वो भी आपको मिस यूज कर देता है। ऐसे वाक़यात बहुत सी बात हमें पता है, इसीलिए ही मैं ये बात कर रही हूँ। आपका कोई भी इदारा, ये भी हमारे बड़े समझाते थे, ये भी हमें उस्ताद बताया करते थे कि अगर आप, मुझे याद है अच्छी तरह से कि वो कहते थे अगर आपने अपने उस्ताद से कोई बात मनवानी है तो आप ऐसे करो, 2-3 लोग जाएं, आप उनसे जाके बात करें। बदतमीजी नहीं सिखानी, हमने उनको तमीज और एहतराम से कैसे बात करनी है, किस तरह से बात मनवानी, ये सिखाना है। और ये सब चीजें घर से निकल के
استاد اسکول تک اس کے بعد آ کرے، مدرسے یا اس کے جو تعلیمی ادارے وہاں تک بات پہنچتی ہے. یہاں سے نکل آئی مدرسے کی بات بائی چانس. اب مدرسے پہ بھی کام کرنا بہت ضروری ہے. مدرسہ ریفارم ایک اب ہماری گورنمنٹ نے اسٹارٹ کر لی ہے, نصاب کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, لیکن اب مدرسے میں بہت سے کیسز نکل رہے ہیں. اس کا جو ہمیں سائیڈ افیکٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو ایسے ہمارے ممالک ہیں جو ہمیں ویسے برا کرنا چاہتے ہیں, جو ہمارے ریلیجن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کو ایک موقع مل گیا کہ یہاں کے جو مولوی ہوتے ہیں, جو داڑھی والے ہوتے ہیں, وہ تو بہت ہی خراب ہے. اس میں کیا وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے آج کل اس شہر میں بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے پاس کل کچھ خواتین آئی, انہوں نے کہا کیا اسکولوں کو بھیجے, وہاں تو آئی روز اسکول بند ہو رہے ہوتے ہیں, فیسیں لے رہے ہوتے ہیں, میں نے اپنے بچے مدرسے چھوڑا ہی ہوں, بس وہیں کھانا کھائیں وہیں رہیں. یہ نہیں ہے حل. ہم مدرسے چھوڑیں, چاہے آپ گاؤں بیٹھی ہیں, چاہے آپ جھونپڑی میں بیٹھی ہیں, چاہے آپ شہر میں بیٹھی ہیں, آپ کے پاس ٹی وی ہے, آپ سن رہی ہیں, یہ تو ہے, ہمیں پتہ ہے ہر جگہ ٹی وی پہنچ چکا ہے, ریڈیو پہنچ چکا ہے. ہماری بات وہاں تک پہنچانی یہ ضروری ہے کہ مدرسے میں بچوں کو اگر آپ ایک تو کوشش کریں کہ ہاسٹلائز نہ کریں, آپ صبح بھیجیں شام کو لے آئیں اگر آپ وہیں رہتے ہیں. اگر آپ آؤٹ آف سٹی رہتے ہیں تو آپ جائیں, آپ وہاں پہ خبر کریں, پھر بچے سے پوچھیں. آپ پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں, بچہ آپ کو بتاتا ہے روتے ہوئے کہ میرے ساتھ استاد نے یہ کیا. استاد کا تو حق ہے کہ وہ آپ کو مارے, استاد کا تو حق ہے کہ وہ یہ کرے. نہیں, ہمیں بہت سی چیز دیکھیں, جب وقت گزر رہا ہے, وقت تبدیل ہو رہا ہے, بہت کچھ ہمیں اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا, رویوں کو بہتر کرنا ہوگا, والدین کو سب سے فوکس کرنا ہوگا. سر لاسٹ میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو اس حوالے سے ایکٹیویٹیز ہیں, وومن کے حوالے سے, ہراسمنٹ کے حوالے سے بات کی, اسپورٹس کے حوالے سے بات کی, تو ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ہمارے کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, مزید ہم کس طرح فروغ دے سکتے ہیں؟ حکومت کو, HEC کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ اویئرنیس دی جائے, جیسے میڈم نے بات کی, اور دوسرا جو یونیورسٹی کی بات کریں, وہاں ہے اسٹوڈنٹس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ میں DSA میل اور DSA فیمیل ہوتے ہیں. تو مینجمنٹ کو چاہیے کہ اچھے ٹیچرز کو یہ ذمہ داریاں دیں, ٹھیک ہے, تاکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمدردی بھی اعتماد بھی کر سکیں اور شیئر بھی کر سکیں. جی ہاں, وہ ٹرسٹ بلڈنگ ریلیشن شپ ہو ان کا. دوسرا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو گھر سے بھی ٹریننگ ملنی چاہیے, جیسے مس نے کہا کہ فارمل ڈسٹینسنگ آپ نے رکھتے ہوئے کیسے کمیونیکیٹ کریں. بالکل بالکل, اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, اساتذہ کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ رکھنا ہے. اور ایک اور کہ جب بھی کوئی ناگوار کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور رپورٹ کریں. میڈم, جس طرح سر نے میں سر تھوڑا سا مکمل کر لوں ایک لائن اور, کہ اب یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ سیل موجود ہیں, بالکل, جہاں وہ ٹیچرز کے ایون کمپلینٹس بھی وہاں جا سکتی ہیں اور اسٹوڈنٹ کی بھی جا سکتے ہیں. تو وہاں ایک فورم ہے تو اس کو یوز کریں. لیکن اس کو مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے. جب تک بچوں کو اعتماد نہیں ہوگا اس کمیٹی پہ, یا ان کی بات سنی نہیں جائے گی, تب تک اس کا فائدہ نہیں ہوگا, تب تک اس کے اثرات نظر نہیں آئیں گے. میڈم لاسٹ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اویئرنیس, آگاہی سب سے اہم ہے. آگاہی بہت ضروری ہے. ابھی آپ بتا رہے ہیں ہیراسمنٹ سیل ہوتا ہے, لیکن بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہی جو استاد بات کرے گا کہ دیکھیں آپ کی یونیورسٹی میں یہ فیسلٹیز موجود ہیں. دوسرا, درد, تکلیف, پریشانی زندہ ہیں تو ہوتی ہے. جب سکوت ہوگا, جب کچھ نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب ہے آپ مردہ ہیں, اپنی رخصتی ہے. تو اگر آپ زندہ ہیں تو بہت سی چیزوں کو فیس کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا. میڈم بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں اس طرح سے گفتگو کی. پروفیسر ڈاکٹر نشاط صاحب, آپ کا شکریہ. ناظرین, آپ نے جانا کہ اس حوالے سے کس طرح سے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل ایجوکیشن ہے اس پر فوکس کرنا ہے, اسپورٹس کے حوالے سے کس طرح سے سرگرمیوں کو بہتر بنانا ہے, اور جو ہم نے بات کی زیادہ سوشل میڈیا کے استعمال پر, اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے ان کو ذرا سمجھانا ہوگا, مانیٹر بھی کرنا ہوگا کہ بچے کیا یوز کر رہے ہیں, کیا روزانہ کتنا سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, اور کس طرح کی سائٹس کو وزٹ کیا جائے. تو اس کے لیے والدین کو مانیٹرنگ کرنی ہوگی اور ایک اچھے انداز سے بچوں کو سمجھانا ہوگا. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم پروگرام سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے اور ہم نئے موضوعات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پرو وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر نوید اختر صاحب. سر, آپ کو خوش آمدید. آپ آج ہمارے پروگرام میں آئے. ملتان میں تو موسم بہتر ہو گیا, کل بہاولپور بارش ہوئی؟ جی, کافی زیادہ بارش ہوئی, بلکہ سڑکوں پہ پانی بھی کھڑا ہو گیا اور کافی جگہ پہ جو ہے وہ روڈ بلاک بھی ہو گیا, اور
अच्छा मौसम हो आपने गया। मौसम को एंजॉय किया, वो जो मौसम बारिश के बाद एक खूबसूरत एहसास जी। का होता है। तो ये हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं, फार्मिस्ट हैं और उसके अलावा मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर साहब। सर आपको भी खुश आमदीद। हम आपसे मेडिसिन के हवाले से यकीनन जानेंगे कि आजकल क्या सूरत हाल है मार्केट्स में, जो मेडिसिन आ रही हैं और उस हवाले से जेनेरिक मेडिसिन है, उसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है उसके अलावा तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे प्रो वाइस चांसलर साहब के पास और आईयूबी के हवाले से ज़रा जानेंगे कि आजकल एडमिशन के हवाले से क्या सूरत हाल है। और आईयूबी रैंकिंग में पहले नंबरों पे आ रही है साउथ पंजाब में। अगर बात कर लें तालीम के हवाले से, रिसर्च के हवाले से बेहतरी आ रही है, तो इन सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सर आईयूबी की आजकल साउथ पंजाब में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन नज़र आ रही है, स्टूडेंट्स का एतमाद भी नज़र आ रहा है। इसकी मेन वजह क्या है? अगर हम बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो आईयूबी किस तरह से अपना नाम बेहतर बनाती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईयूबी में 2019 में चेंज आई। वाइस चांसलर साहब ने प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, बेसिकली इंजीनियर हैं, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, तो इन्होंने 2019 में जब चार्ज संभाला तो आते ही इन्होंने रिवैम्पिंग और रेनोवेशन का काम शुरू किया। तो 2 साल की अनथक मेहनत के बाद हम लोग इस जगह पर पहुंच गए हैं कि हमारे स्टूडेंट की तादाद 13,000 से बढ़कर 43,000 तक पहुंच चुकी है। 13,000 से बढ़ती माशाअल्लाह। जी सर, 2 साल में। और इस साल ये तादाद अक्टूबर में अप्रॉक्सीमेट हम जो टारगेट फिक्स किया वो 55,000 का फिक्स किया है कि हम 12,000 से 15,000 और स्टूडेंट इस दफा जो है एडमिट इतनी करें। बड़ी चेंज कैसे आई कि 13 इतना आप 20, 25, 30 हजार का डिफरेंट आ गया? ये चेंज इतनी कैसे आई? ये चेंज के पीछे बड़ी हमारे प्रोफेसर साहब की और उनकी टीम की बड़ी अनथक मेहनत है। डॉक्टर अतर महबूब साहब ने सबसे पहले जो है फैकल्टियों को इंक्रीज किया। 2020 के सिंडिकेट में फैकल्टियां इंक्रीज की गई, एकेडमिक काउंसिल में, फिर सिंडिकेट में 6 फैकल्टियों से हम 13 फैकल्टियों पर चले गए। और इसके अलावा प्रोग्राम जो के यूनिवर्सिटी में 54 प्रोग्राम थे, उससे हम बढ़कर 129 प्रोग्राम्स पर चले गए। 120 तक पहुंच गए, 129 तक। 129 तक, जी। ठीक है। तो जब प्रोग्रामों की तादाद बढ़ी है तो फिर स्टूडेंट की तादाद भी बढ़ेगी। फिर और इस जो है खिते को जरूरत भी थी, इस पूरे एरिया को जरूरत भी थी। जी बिल्कुल। पहले बहावलपुर और गिरदोनवा के बच्चे, साउदर्न पंजाब के बच्चे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में वो जो प्रोग्राम जो बहावलपुर में नहीं थे, वो प्रोग्राम डॉक्टर साहब ने शुरू किए और नई फैकल्टियां बनाई, नए प्रोग्राम शुरू किए। उससे स्टूडेंट की तादाद में खातर खा इजाफा होना शुरू हुआ। फिर उसके लिए एडमिशन के लिए स्पेशल जो है कैंपेन चलाई गई। ठीक है। स्टूडेंट सोसाइटियों को मुतहरक किया गया। स्टूडेंट सोसाइटियों में बच्चों ने और वॉलंटियर्स ने मिल के गाँव जाकर और शहर जाकर आईयूबी के स्टॉल लगाए और एडमिशन बढ़ाने में हेल्प की। दूसरा, हमने ऑनलाइन का सिस्टम बहुत पहले शुरू कर दिया था, तो उसमें भी तब्दीली आई, बेहतरी की गई, एक्सपेंशन हुई। बिल्कुल। तो डायरेक्टरेट आईटी को रिवैम्पिंग किया गया, एक्सटेंड किया गया। तो ऑनलाइन एप्लीकेशनें भी जो है वो पिछले साल हमारे पास 70,000 एप्लीकेशनें थी और इस साल अब तक, कल तक का फिगर है, 1,03,000 एप्लीकेशनें हमारे पास 1,03,000 स्टूडेंट करीब जो है वो आपको एप्लीकेशन दे चुके हैं। जी सर। यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये तो अब एक स्टैंडर्ड आप लोगों ने कायम कर दिया जी सर। कि 1 से 2 साल में अगर प्रॉपर फोकस किया जाए तो जो भी इदारा उसको खड़ा किया जा सकता है। जो हम गिला करते हैं कि यार बजट नहीं है, हुकूमत की ये पॉलिसी है, हायर एजुकेशन ने कुछ नहीं दिया, ये सब कुछ चेंज हो सकता है अगर आपकी विल हो। बिल्कुल। अतर महबूब साहब ने बहुत इसमें मेहनत की है और वो जहां भी रहे हैं उनका सबका रिकॉर्ड भी ये है कि उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी में पहले फिगर बता देते हैं 1 लाख से ज्यादा जब आपके पास एप्लीकेशन आ जाए तो लाजमी बात है कि लोगों का एतमाद है, एतमाद कर रहे हैं, एतमाद कर रहे हैं और दूर दराज से बच्चे जो है दाखिला ले रहे हैं और उसमें कुछ बच्चों को फैसिलिटेट भी किया गया। अब हमारी बसेस जो है वो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस जो है वो 60 किलोमीटर की रेंज में बहावलपुर से दूर तक 60 किलोमीटर, खैरपुर टामे वाली है 60 किलोमीटर तक है, तो वहां तक बसें जाती हैं, बच्चों को लाती हैं, बच्चों को लेकर जाती हैं।
इसी तरह अहमदपुर जो है 40 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर है, वहाँ तक जाती हैं, बच्चों को लेके आती हैं। कैरोड़ पक्का, लोधना और यजमान जो है वो 40 किलोमीटर है, वहाँ तक बसें लाती हैं बच्चों को। हॉस्टल्स एक्सटेंड किए हॉस्टल के गए हवाले से, जी क्योंकि अब जब इतनी तादाद में स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हॉस्टल की डिमांड भी होगी, तो हॉस्टल के हवाले से क्या? हॉस्टल के हवाले से ये है कि कुछ हॉस्टल नए भी बनाए गए हैं और नए बन भी रहे हैं। अब भी इस वक्त जो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत एकेडमिक ब्लॉक्स बन रहे हैं, हॉस्टल्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, और अगले 2 साल में हम जो है वो तकरीबन जो यूनिवर्सिटी में इस वक्त कवर्ड एरिया हमारे पास है वो 10-12 लाख स्क्वायर फीट है, तो इसको हम बढ़ाकर 9 लाख स्क्वायर फीट हम अगले 2 साल में एक्सटेंशन कर रहे हैं। ये बात तो आपकी काटूं, एक जो चीज हम देखते हैं कि वक्त पे फैसले नहीं किए जाते। हमारे पास 2 एग्जांपल हैं, निष्ठा मेडिकल यूनिवर्सिटी, वही हॉस्टल कई अरसे से चल रहे हैं, प्राइवेट तक भी स्टूडेंट को नहीं दिया जाता, हालांकि वो डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से भी कोई हॉस्टल लिया जा सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं किया। सेकंड, हमारी जिक्र यूनिवर्सिटी में भी आए रोज ही प्रॉब्लम होता है फीमेल हॉस्टल के हवाले से, मेल हॉस्टल के हवाले से। वक्त पे फैसले लेना कि हमारी यूनिवर्सिटी एक्सटेंड हो रही है, एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हमें ज्यादा जरूरत होगी, ये कितना अहम होता है? जी, ये राइट डिसीजन एट राइट टाइम। अतर महबूब साहब में ये क्वालिटी है कि वो फैसला बर वक्त करते हैं। और हॉस्टल के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमारी यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल के अलावा हमने एक कमेटी तश्कील दी जो कि प्राइवेट हाउसेज को और प्राइवेट हॉस्टल्स को एक्यूपाई कर रही है और स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। वहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड डेवलप की है कि कम अज कम इस स्टैंडर्ड से ऊपर जो है हॉस्टल होगा तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो करेगी और बच्चों को गाइड करेगी और उस जगह पर एकोमोडेशन दी जाएगी, तो बच्चों को फैसिलिटेट किया गया। तो इस फैसिलिटेशन के नतीजे में जो है यूनिवर्सिटी के दाखिले जो है वो उसमें इजाफा हुआ। सर, हम इस पर आपसे मजीद भी बात करेंगे। हम जाएंगे प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर साहब के पास, मेडिसिन के हवाले से जाएंगे। सर, जिस तरह आजकल मेडिसिन के हवाले से बात करें, जेनेरिक मेडिसिन की बात की जाती है, ये बेसिकली है क्या, कौन सी मेडिसिन होती है, और इसके हवाले से ज़रा पब्लिक को बताइएगा। शुक्रिया सर। एक्चुअली इस वक्त हम सबसे पहले तो ये बताएंगे कि भाई जेनेरिक और एक ब्रांड, हमारे ना ड्रग को यूजली 2 नाम दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा भी हैं। जेनेरिक में हम ये कहते हैं कि भी जेनेरिक वो है, 2 नाम होते हैं, ब्रांड और जेनेरिक। जेनेरिक को हम ये भी कहते हैं जो रिकमेंडेड इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी होते हैं। ये वो नाम है किसी भी ड्रग का जो वर्ड पूरे थ्रू द वर्ल्ड रिकग्नाइज होते हैं। आप किसी भी ड्रग का जाके नाम, फॉर एग्जाम्पल हम अगर यहाँ, और जो ब्रांड नेम होता है ये एक मैन्युफैक्चरर का नेम होता है, उस कंपनी का नेम होता है, उस कंपनी का नेम होता है, प्राइवेट नेम होता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ कहें पैनाडॉल की बात करें तो पैनाडॉल में हम उसका कहते हैं कि ये इसका ब्रांड नेम है, इसके अंदर जो पैरासीटामोल है, जी पैरासीटामोल है, ये उसका जेनेरिक नेम है, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं कि रिकमेंडेड इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी कहते हैं। तो ये बेसिकली अब हम पूरी दुनिया में जो एक ट्रेंड है वो ये है कि भी जेनेरिक नेम से मेडिसिन सारी प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर हम ट्रेंड की बात करें, अगर बाकी ममालिक और पाकिस्तान की बात करें, यहाँ तो हमें मेडिसिन के नाम याद होते हैं, यहाँ हमें जेनेरिक नहीं मालूम होता कि कौन सी मेडिसिन है, कितनी इकसाम की मेडिसिन है, कितनी इसकी ब्रांड है। हमारे यहाँ सिर्फ वो पैनाडॉल है, पैनाडॉल यूज की जाएगी। तो बाहर के ममालिक में क्या प्रैक्टिस है? बाहर के ममालिक में पैनाडॉल आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, वहाँ हमेशा नाम उसका पैरासीटामोल ही लिखा जाएगा, ठीक है। अगर मतलब इस तरह हम कोई एस्प्रिन लिखेंगे, हाँ, तो वो एस्प्रिन लिखी जाएगी। हमारे यहाँ क्या करते हैं, डिस्प्रिन लिखेंगे, डिस्प्रिन उसका ब्रांड नेम है या मैन्युफैक्चरर नेम है। हमेशा बाहर जब भी जाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन में लंदन में भी रहा तो वहाँ मुझे कंसल्ट करने का मौका मिला, तो उसमें जब भी लिखा जाता है वो उसको आपको जेनेरिक नेम से ही मेडिसिन मिलेगी। तो बेस्ट क्या है, अब अगर डॉक्टर जेनेरिक नेम लिख के देगा और जेनेरिक नेम वाली मेडिसिन अगर पेशेंट यूज करेगा तो कितना फायदेमंद होगी, अगर ब्रांड वाली यूज करेगा तो वो उसके लिए नुकसान या उसके लिए फायदेमंद होगी? जी, उसमें देखें सर, ये बेस्ट की आपने बात की, बेस्ट तो यही है कि भी उसमें जेनेरिक नेम से लिखा जाए। इसमें अब इसके बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में ये राइज है, उन्होंने इसके बेनिफिट्स को देखते हुए ही सामने रखा है। हमारे यहाँ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जिसमें डॉक्टर जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो जिसके साथ कोई कमिटमेंट हो या कोई ऐसा
जो मेडिसिन सारे डॉक्टर ऐसे नहीं है, लेकिन चंद एक डॉक्टर हैं कि जिसमें हम मतलब कहते हैं कि जब वो ब्रांड नेम से लिखे जाएंगे, मेरा कम्युनिटी फार्मेसी का भी एक्सपीरियंस है और वहाँ मैंने प्रिस्क्रिप्शन ऐसी देखी कि जिसमें एक ही जेनेरिक नेम से जो ड्रग है उसके 2 डिफरेंट ब्रांड नेम एक ही प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। ये हो रहा है, डाइक्लोफिनेक सोडियम एक में ये हो रहा है जी हुआ, ये तो मैं विटनेस हूँ, मैंने खुद अपनी हमारी मतलब कम्युनिटी फार्मेसी का मेरा एक्सपीरियंस भी है, तो वहाँ मैंने ये देखा है। तो जब हम जेनेरिक से लिखेंगे तो उसमें ये चीजें खत्म हो जाएंगी। कभी डॉक्टर ये नहीं लिखेगा कि डाइक्लोफिनेक 2 दफा लिखे, लेकिन जब ब्रांड में आएंगे तो वो 1 दफा आर्टिफेन और 1 दफा वो वोल्ट्राल लिख सकता है और लिखा होता है। तो ये बहुत सारे अच्छा, इस पे जब ये ड्राफ्ट ने भी कहा कि आपने फार्मूला लिखना है, जेनेरिक लिखना है, आपने ब्रांड नहीं लिखना है, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, लेकिन हमने जब डॉक्टर तंजीमों की बात की वो ये कहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, हम किस तरह इतनी इकसाम की मेडिसिन कंपनीज आ चुकी हैं, फिर वो उसको मिलेगी नहीं, फिर आप अतायत को फरोग देंगे। डॉक्टर्स ने ये बात कह के इससे जान छुड़ाने की कोशिश की और भी इस पर अमल नहीं किया जा रहा। तो फिर जब इतने ज़्यादा इसके फायदे हैं तो फिर डॉक्टर कम्युनिटी क्यों नहीं इस तरफ आ रही? उसमें हम मतलब ये एक आपसे बात की ना कि उसमें क्योंकि अब ये है कि गिव एंड टेक भी है फार्मेसीज का, कुछ मेडिकल रैप्स के थ्रू, उसमें सबसे बेहतर ये है कि सर उसको फिर पेशेंट ही अफोर्ड कर रहा है। हम ये कहते हैं कि भी जब जेनेरिक नेम पे लिखेंगे ना, मैंने कहा इसमें पॉलिसी बननी चाहिए, हॉस्पिटल को एतमाद में लेना है। जो है मेडिसिन का ये फार्मासिस्ट की ज़ेरे निगरानी होता है। अब हॉस्पिटल में मेडिसिन आ गई, आने के बाद हॉस्पिटल में वो डॉक्टर्स को बताया जाता है कि हमारे पास ये मेडिसिन अवेलेबल हैं, आपने इन्हीं मेडिसिन के अंदर रहते हुए प्रेस्क्रिप्शन लिखनी, ठीक है, और वो जेनेरिक नेम से लिखी जाती है। हॉस्पिटल के अंदर तो चले ये हो गया कि जेनेरिक के हिसाब से जो है जेनेरिक नेम के साथ मेडिसिन डिस्पेंस की जाएंगी, पेशेंट्स को दी जाएंगी। अब जब वो प्रेस्क्रिप्शन आउट पेशेंट में लिखी जाएंगी, बाहर जाएंगी, तो बाहर कम्युनिटी पर फार्मासिस्ट मौजूद होना चाहिए। कम्युनिटी जो हमारी शॉप्स हैं, जो हमारी फार्मेसी शॉप्स हैं, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, उस पर फार्मासिस्ट मौजूद होना चाहिए। उस हवाले से तो अभी हम देखते हैं कि वहां पर ये रुझान नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत कम है रुझान। जी फार्मेसी मौजूद हैं, फार्मेसी पर फार्मासिस्ट चंद फार्मेसी पर, अच्छी फार्मेसी पर मौजूद होते हैं, लेकिन अक्सर जो स्टोर खुले हैं, जो मेडिकल स्टोर खुले हैं वहां पर फार्मासिस्ट नहीं होते, वहां पर डिस्पेंसर या टेक्नीशियंस वगैरह ज्यादातर बैठे होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले तो पॉलिसी, हेल्थ केयर कमीशन को भी रोल अदा करना चाहिए। जी हेल्थ केयर कमीशन को भी इसमें रोल अदा करना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा जो है ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है उनका काम है, तो वो इंश्योर करें कि तमाम फार्मेसीज पर, तमाम मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इस वक्त वर्किंग कुछ कर रही है, बेहतरी होनी चाहिए। देखें जो ड्रग एनफोर्समेंट है वो तो फेडरल लेवल पे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी करती है और प्रोविंशियल लेवल पर हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स करते हैं। लेकिन अब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ड्रग इंस्पेक्टर की बात आगे तो इतने ज्यादा लोगों के गिले हैं उनसे कि वो ये कहते हैं कि यार 4 ड्रग इंस्पेक्टर हैं पूरे मुल्तान के, जिला मुल्तान में, और हजारों जो है मेडिकल स्टोर खुल चुके हैं। वो किस तरह से मॉनिटर करते हैं, क्या हिसाब होता है? कभी कभार कोई टीम आ जाए तो 1-2 मेडिकल स्टोर सील हो जाते हैं, वरना वही सिलसिला चल रहा होता है। ये जो सिस्टम हमारा है इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? देखें सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए यह है कि जैसे जैसे स्टोर्स बढ़ रहे हैं, एक ड्रग इंस्पेक्टर्स को मिसाल के तौर पर 500 मेडिकल स्टोर्स का एरिया दे देना चाहिए कि आप ये 500 मेडिकल स्टोर्स को लुक आफ्टर करेंगे, यहाँ पे रूल रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जो प्रोसीजर बताए हैं, जो रूल्स बताए हैं, उनको फॉलो करते हुए इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे और क्वालिटी मेडिसिन को इंश्योर करेंगे। तो ड्रग स्टोर्स तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उस पर तो कोई चेक नहीं है, वो तो डेली के हिसाब से बढ़े जा रहे हैं, मंथली के हिसाब से बढ़ रहे हैं, ईयरली के हिसाब से बढ़ रहे हैं। लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर की सीटें वो नहीं बढ़ रही, वो हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से वही हैं। एरिया भी उनके पास वही है। उसी एरिया में आज से 10 साल पहले मिसाल के तौर पे अगर 500 मेडिकल स्टोर होते थे तो अब बढ़ के 3000 मेडिकल स्टोर उसी एरिया में हो चुके हैं।
तो अब ड्रग इंस्पेक्टर के लिए बड़ा मुश्किल है कि 3000 मेडिकल स्टोर्स को अपने एरिया में लुक आफ्टर करे, उनको मंथली बेसिस पर विजिट कर सके या सेमेस्टर बेसिस पे आफ्टर 6 मंथ भी विजिट कर सके। उसमें कुछ ड्रग इंस्पेक्टर्स के अपने प्रॉब्लम्स ये आ जाते हैं, गवर्नमेंट जो है वो उनको प्रोवाइड करे, कन्वेंस प्रोवाइड करे, फील्ड फोर्स उनके साथ जो है असिस्टेंट्स वगैरह होने चाहिए जो उनको हेल्प करें साथ, ताकि वो उस हवाले से वर्क कर सके। सर, जिस तरह बात हो रही, सर ने में बात की कि हमारे पास इतनी ज़्यादा मेडिकल स्टोर खुल चुके हैं, मेडिसिन कंपनीज भी इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि अब हमें मालूम नहीं होता कि क्वालिटी मेडिसिन की जब बात की जाती है तो ड्रैप में दी के जो अदालत हैं उन्होंने तो इजाज़तनामे दे दी हैं मेडिसिन कंपनीज को, लेकिन वो जो क्वालिटी की बात की जाती है किया जा रहा, इस पे कितना काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक ही उसकी फार्मूले की कई कंपनीज के मेडिसिन आ चुकी हैं, कीमत देखें तो वही जो काम कीमत 5 रुपए की मिल रही है वो 20 रुपए की मिल रही है, तो इसमें किस तरह से वर्क होना चाहिए? जी थैंक यू। असल में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ही यही, जब हम फार्मासिस्ट की डेफिनेशन करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी क्या है कि मेडिसिन को प्रोवाइड करना, नॉट ओनली द मेडिसिन, क्वालिटी मेडिसिन इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी। तो ये असल जिम्मेदारी फार्मासिस्ट की है। फिर उसके लिए फार्मासिस्ट के साथ हम कहते हैं कि भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने ड्रग टेस्टिंग लैब हमारे यहाँ एस्टेब्लिश की हुई हैं। सबसे पहला चेक एंड बैलेंस तो हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अपना है कि उनकी अपनी टेस्टिंग होती है, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी होती है। आप इसमें एक्सपर्ट हैं, जो अभी इजाज़तनामे दिए गए तो आप उससे मुतमिन हैं कि तमाम तो जो मेडिसिन इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं तो इस पर मजीद सख्ती की ज़रूरत है, मजीद इसकी लेबॉर्ट्री में वर्किंग की ज़रूरत है? जी डेफिनेट, क्योंकि अभी हमारे यहाँ ना हम ये कह सकते हैं कि फ्लाज हैं जो जिस तरह से रिकमेंड होके आ रही हैं, मार्केट हो रही हैं, इनकी बायोक्लिनिकल स्टडीज़ नहीं हो रही। बायोक्लिनिकल स्टडीज़ बहुत ज़रूरी हैं, वो होनी चाहिए। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट और हैं जो जिनको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ प्रिस्क्राइब तो हैं कि भी ये कर लें, बिल्कुल, लेकिन उसमें स्टिल फ्लॉज हैं, बहुत ज्यादा हैं, उसको हमें ठीक करने की जरूरत है। और जिसका नुकसान तो पेशेंट को, अल्टीमेटली पेशेंट को हो रहा है। हाँ। जी, उसका नुकसान पेशेंट को हो रहा है। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि भी अथॉरिटीज को इस तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए और बहुत सारा, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भी क्वालिटी पे हम फोकस कर लें, क्वालिटी पे फोकस हो सकता है, बहुत इजीली हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, आपने बताया कि बाहर भी जाते रहे, तो वहाँ किस तरह का एक्सपीरियंस है कि मेडिसिन मार्केट में आना चाहे फर्स्ट कोई कंपनी लेके आ रही है, उसके जितने चेक एंड बैलेंस है और जहाँ कितना फर्क है? मेरा जो बाहर का एक्सपीरियंस है वो कम्युनिटी से मैंने मेडिसिन परचेज की, वहाँ सिस्टम है NHS का। मैं अगर लंदन की बात करूँ ना, इंग्लैंड की, तो वहाँ NHS है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, मोस्टली हम उस तरह का है, लेकिन बहुत कम है। उनका बहुत बड़ा सिस्टम है, मे बी के वर्ल्ड में सबसे बड़ा है सिस्टम उनका। तो वो अब वो उसमें ये कर रहे हैं कि नॉमिनेटेड फार्मेसीज हैं, ठीक है, हर बंदे का एक कार्ड बना है, उसके थ्रू वो परचेज कर रहा है। कुछ बंदे, मतलब कि कुछ लोग जो हैं, जो पेशेंट हैं, वो इंडिविजुअली परचेज कर रहे हैं, अदरवाइज वहाँ पे जेनेरिक बेस्ड सिस्टम है। बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है, लिमिटेड कंपनीज हैं, उनकी क्वालिटी कंट्रोल और हर चीज बहुत आसान है। हमारे यहाँ तो आप चले जाए, मैं नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो रजिस्टर्ड बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मतलब उसमें वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। मेडिसिन में भी क्वालिटी की कंट्रोल नहीं कंट्रोल की जाएगी और उसमें ड्रैप पे या दीगर दाए उस पर वर्क प्रॉपर नहीं कर सकेंगे, तो इंसानी जान से इसका डायरेक्ट लिंकेज है, तो इस पे कितना फोकस करना चाहिए हुकूमत को, इदारों को? बिल्कुल ठीक कहा, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ड्रैप की जिम्मेदारी है कि तमाम इंसानों को जो है क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करवाए। इदारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, उनका अपने क्वालिटी कंट्रोल चेक होते हैं, लेकिन वो चेक जो है एक खास किस्म के हैं, केमिकल चेक, क्वालिटी कंट्रोल चेक किए जाते हैं कि 100% प्योरिटी है, 100% एक्टिव मॉलिक्यूल हैं या नहीं। जरूरत अब इस चीज की है कि एक मेडिसिन बन गई, अब बनने के बाद उन्होंने अपना, इदारे ने या कंपनी ने अपना चेक किया, उन्होंने कहा ये इसके अंदर 100% मेडिसिन मौजूद है, ठीक है। अब वो मेडिसिन जब पेशेंट को दी जाती है तो किसी पेशेंट को फर्क पड़ता है और किसी पेशेंट को फर्क नहीं पड़ता। तो अब जरूरत इस चीज की है कि वो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज की जाए, बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज की जाए कि आपने मेडिसिन तो दे दी, देने के बाद क्या वो मेडिसिन ब्लड में आई भी उतने उसका लेवल अचीव हुआ जिसमें उसने इफेक्ट प्रोड्यूस करना था, या कि
वो इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। इस पे वर्किंग हो रही है अभी तक? जी वर्किंग हो रही है, इस पे गवर्नमेंट ने कुछ लेजिस्लेशन भी की हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे और एक्सटेंसिव वर्किंग की मजीद बेहतर वर्क करने की जरूरत होगी। हम मजीद भी इस पे बात करेंगे। हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आने के बाद हम तफसीली डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने तफसीली गुफ्तगू की ब्रेक से जाने से पहले कि किस तरह से आजकल जो मेडिसिन कंपनीज हैं वो धर धर तो रजिस्टर हो रही हैं, लेकिन जो अब लास्ट में जो हमने ब्रेक से जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे वो ये थी कि वहाँ से तो उनका फार्मूला अप्रूव हो गया, लेकिन जो अब पेशेंट हैं उन पे वो मेडिसिन कितना इफेक्ट कर रही है, इस हवाले से क्या कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा। सर एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में जो प्रैक्टिस होती है कि आपने जो मेडिसिन परचेज करनी है पेपर रूल्स के मुताबिक, आप जब भी बेड में जाएंगे उसके मुताबिक वो होगा कि जो आपको कम कीमत में जो भी मेडिसिन कंपनी आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेगी आपने वो परचेज करनी है। जब कम कीमत में सबसे लोएस्ट रेट पे जो हम मेडिसिन लेंगे तो क्या उसमें स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी को भी उसी तरह रखा जाएगा जो ज़्यादा कीमत की होंगी? इस पर किस तरह से हमारा जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उनको चेंजेस लानी चाहिए कि वो किस तरह से इस पर वर्क करें? जी मैं इस ज़मन में ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के जो पेपरा रूल हैं उसके मुताबिक ही गवर्नमेंट सेक्टर में परचेज होती है, यूनिवर्सिटी में भी परचेज पेपरा रूल्स के मुताबिक, और वो लोएस्ट जो बिडर है उसको ऑर्डर दिया जाता है। अब इसमें यह है कि जो मेडिसिन सप्लायर हैं, वेंडर्स हैं, या जो कंपनियां हैं सप्लाई कर रही हैं, उन्होंने केमिकली तो वो प्रूव कर दिया कि हमारी मेडिसिन में ये हमारी प्रोडक्ट में एक्टिव मॉलिक्यूल जो हैं 100% मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो जो हम मेडिसिन लोएस्ट रेट पे परचेज कर रहे हैं क्या वो पेशेंट्स को फ़ायदा देती हैं या नहीं देती। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है, इस पे पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इसमें होना ये चाहिए कि जो भी कंपनियां लोएस्ट रेट के साथ कोट कर रही हैं, ठीक है, वो केमिकली तो 100% प्रूवन है कि उसमें ड्रग मौजूद है, लेकिन उनको बायो इक्विवेलेंट भी होना चाहिए, उनकी बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज होनी चाहिए, कंपनीज के अंदर भी बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्रियां भी एस्टैब्लिश होनी चाहिए जहां पे इन मेडिसिन के ट्रायल किए जाएं और ये देखा जाए कि क्या ये मेडिसिन देने के बाद पेशेंट को ब्लड में पहुंचती भी हैं, नहीं पहुंचती, कितनी पहुंचती हैं। तो ये काम एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में करता है। इसके हवाले से क्लिनिकल फार्मासिस्ट का कितना अहम रोल है इस हवाले से? क्लिनिकल फार्मासिस्ट मैं समझता हूं जी कि बहुत अहम रोल है। गवर्नमेंट ने अभी तक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट तो कुछ अपॉइंट कर लिए हैं, लेकिन क्लिनिकल फार्मासिस्ट अभी तक कोई भी पंजाब में अपॉइंट नहीं हुए। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट को अपॉइंट करना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट जो है वो इसको ट्रायल नहीं हुए अभी, किसी जगह भी नहीं हुए। ठीक है, ना सिंध में हुए हैं, ना बलोचिस्तान में हुए हैं, कहीं भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपॉइंट नहीं हुए। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए चाहे मॉडल हॉस्पिटल्स बना ले, मॉडल हॉस्पिटल डिक्लेयर करके चंद हॉस्पिटल में ये ट्रायल करना चाहिए कि वहां पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपॉइंट करने चाहिए, और उन देखना ये चाहिए कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपॉइंट करने के बाद गवर्नमेंट को कितना बेनिफिट होता है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, हॉस्पिटल्स को क्या बेनिफिट होते हैं, पेशेंट को क्या बेनिफिट होते हैं। मुझे याद है मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, अमेरिकन जर्नल में एक स्टडी छपी थी कि इफ यू स्पेंड $1 ऑन दी परचेज ऑफ द सर्विसेज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, यानी अगर $1 आप लगाते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट की सर्विसेज को परचेज करने में, तो गवर्नमेंट को क्या फायदे होते हैं? गवर्नमेंट को सबसे बड़े फायदे ये होते हैं कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जो मेडिसिन आ रही हैं उसको मॉनिटर करेगा, जो प्रेस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिखी जा रही हैं, जो कॉस्टली मेडिसिन लिखी जा रही हैं उसको रिव्यू करेगा और सजेस्ट करेगा फिजिशियन के साथ, कंसल्टेशन के साथ कि इस पेशेंट को इस मेडिसिन की बजाय ये ब्रांड की बजाय ये ब्रांड जो है वो प्रेस्क्राइब कर दिया जाए या डिस्पेंस कर दिया जाए, दे दिया जाए।
तो उससे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो कम हो कम, जाएगी। और ये दुनिया इसको मान रही है, सिर्फ यहाँ काम करने की जरूरत जी है। बिल्कुल मानती है और हाँ। अपॉइंटेड है, पूरी दुनिया में क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपॉइंटेड हैं। हम भी गवर्नमेंट से बहुत अरसे से ये तो लेकिन मुकाबला, जब हम हेल्थ सिस्टम का कंपेयर करते होंगे तो जब हम बताते होंगे हमारे यहाँ तो ये प्रैक्टिस है ही नहीं, है ही नहीं। तो फिर वहाँ तो अजीब सा देना तो है यार, कहाँ हाँ पे जी, आप- हम इसीलिए हमारा जो ट्रीटमेंट क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर नहीं है, बल्कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट काफी ज्यादा है। तो इस कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को जो कम कर सकता है वो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट कर सकता है। आप देखें हमारे हॉस्पिटल में जो डेथ रेशो है वो ज्यादा है, बाहर के मुल्कों में डेथ रेशो कम है, तो ये डेथ रेशो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट कम कर सकता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारे हॉस्पिटल में ज्यादा है, इन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही कम करवा सर, सकता अब इस है। वक्त इदारे तो काम इस हवाले से कर रहे हैं कि वहाँ पर फार्मासिस्ट आ भी रहे हैं, मतलब कि प्रोग्राम हाई यूनिवर्सिटी ने शुरू किए हुए हैं। अब एक चीज़ जो हम देख रहे हैं, कॉमन देख रहे हैं, हमने पहले भी बात की कि मेडिकल स्टोर पे अब नजर नहीं आते, अब वो फार्मासिस्ट अपने लाइसेंस हर जगह रखवाते हैं, खुद वो नहीं होते। ये जो एक अलमिया हमारी पूरी कौम में है कि खुद चीज़ों को बिल्कुल डिट्रैक करना, तो ये कितना खतरनाक है, कितना नुकसानदेह है पूरे शोबे के लिए। ये बिल्कुल सही आपने कहा, ये बहुत खतरनाक है। इसमें फार्मासिस्ट को ये नहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो हमारे ड्रग अथॉरिटीज हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको चाहिए कि पूरी तरह ये इम्प्लीमेंट करवाएं और फार्मासिस्ट की हाजिरी को यकीनी बनाएं। फार्मासिस्ट अपना पूरा टाइम 8 घंटे 10 घंटे जो भी वो उनका ड्यूटी टाइम है वो ड्यूटी पर बैठें। जो भी प्रेस्क्रिप्शन आ रही हैं, चाहे वो कम्युनिटी पर फार्मासिस्ट बैठे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं, चाहे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, या किसी और कैपेसिटी में वो वर्किंग कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि खासतौर पे कम्युनिटी पर तो बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट आते हैं, बाज़ औक़ात पेशेंट जो है वो अनपढ़ होता है, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता पेशेंट, तो उसको जो है वो समझाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है आपने मेडिसिन कैसे लेनी है, आपने मेडिसिन किस वक्त लेनी है, कौन सी मेडिसिन के तो साथ। उसके लिए उनका होना काफ़ी लाजमी है, और इसमें यकीनन जिम्मेदारी अदा करनी होगी, क्योंकि अगर ये हम जिम्मेदारी अदा करेंगे तो ये इस शोबे के लिए बेस्ट है, और यही अगर हम दुनिया के साथ कंपीट कर सकते हैं। अगर जिस तरह का एनवायरनमेंट रहेगा, ठीक है कुछ लोग चंद पैसे कमा लेंगे, लेकिन उसका जो नुकसान होगा मरीज को होगा, उसके अलावा जो फार्मेसिस्ट शोबा है उसको भी इसका नुकसान हो रहा है। सर, जिस तरह हम बात कर रहे थे, सर ने भी बात की, इस शोबे के हवाले से बात करें तो इस वक्त IUB की बात कर लें, दीगर बात, तो कौन कौन से प्रोग्राम इस हवाले से शुरू किए गए हैं जो फार्मासिस्ट के लिए? जो बेसिकली जो फार्मासिस्ट के लिए एक ही प्रोग्राम है फार्म डी, जिसको ये 5 साल प्रोग्राम है। पहले ये 4 साल में होता था बी फार्म के टाइटल के साथ कि बैचलर इन फार्मेसी, अब है ये 5 साल प्रोग्राम है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। सर मैं बात कर रहा हूँ, इतना ज्यादा मेरिट हो गया, पहले जो मेडिकल स्टूडेंट है वो कहते हैं मेरा MBBS में हो जाए, वहाँ ना हो तो फिर फार्म डी की तरफ, और जो मेरिट होता है वो 1000 प्लस होता है। तो ये जो रुझान है, फिर आप तो हमेशा जो स्टूडेंट आते होंगे वो 1000 प्लस वाले आते होंगे, वो सारे एक ही क्लास। जी ऐसा ही है। जो मेडिकल से सम टाइम ये होता है कि जो टेस्ट में कहीं रह गए तो वो ऑलमोस्ट मेडिकल के बराबर ही चल रहा होता है। तो 88% ये हमारा लास्ट टाइम का मेरिट रहा है। तो इसमें देखें ये फार्म डी, ये जो हम फार्म डी प्रोग्राम करा रहे हैं, ये टाइटल था, ये पहले बी फार्म से ये स्विच किया 2003 में। तो इस वक्त USA में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने भी इंडिया ने हमसे बाद में शुरू किया है। तो अब ये गल्फ कंट्रीज में भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा ये फार्म डी 5 साल प्रोग्राम करने के बाद फिर इसके बाद है 2 साल का प्रोग्राम। ठीक है, पहले इनिशियल लेवल पे ये जो बेसिक लेवल पे ये फार्म डी है, आगे फिर इसके हमारे पास 5 मेन डिसिप्लिन है जिनमें MPhil प्रोग्राम होता है। उसमें MPhil फार्मास्यूटिक्स है, MPhil फार्मेसी प्रैक्टिस है, MPhil फार्माकोलॉजी है, MPhil फार्माकोग्नोसी और MPhil फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये 5 प्रोग्राम है। इन्हीं में फिर आगे PhD भी है। ठीक है, PhD इन ऑल दीज डिसिप्लिन। तो ये 5 साल प्रोग्राम है। जो स्टूडेंट आते हैं, हम अगर कंपेयर करें तो क्वालिटी एजुकेशन की हम पहले बात करते हैं, या क्वालिटी एजुकेशन और लैब वर्क उसमें कितना हो रहा है हमारे यहाँ, अगर हम बात करें तो? अगर हम IUB की बात करें तो मैं इसको कह सकता हूँ कि भी हम इस वक्त हमारे बच्चों ने जो यहाँ से जिन्होंने ग्रेजुएट हुए, उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन पूरे पंजाब में भी टॉप किया है। हमारे हर दफ़ा हमारे
अच्छी एक परसेंटेज होती है हमारे अमंग ऑल द यूनिवर्सिटीज़। ठीक है। तो पंजाब की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जब हम तो अपने आप को एनालाइज करते हैं अपनी क्वालिटी को कि हाउ मच वी आर प्रोड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, तो हम उसमें ये कहेंगे कि जब हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का आता है, कोई भी पब्लिक सेक्टर में कोई जॉब्स आती हैं, प्राइवेट सेक्टर में हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो पब्लिक सेक्टर में हम कहते हैं कि हमारे हर दफ़ा एक बहुत अच्छी परसेंटेज होती है अमंग ऑल यूनिवर्सिटीज़। तो इस हवाले से आप मानते हैं कि जहाँ पर वर्क हो रहा है। सर एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि स्टूडेंट को जो प्राइवेट सेक्टर आ गया है, अब प्राइवेट सेक्टर के पास ना तो वो लैब्स होती हैं ना तो वो सारे, लेकिन वो धड़ाधड़ इस हवाले से बनाया जा रहा है। तो हम जब गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर प्रॉपर एक मेरिट सिस्टम है, इतने 89% सर ने बताया, और एक प्राइवेट सेक्टर वो आज मुल्तान में शायद आप आए होंगे, कितने बिल बोर्ड नजर आए होंगे कि यार फलां अदारे ने भी शुरू करा दिया, फलां अदारे ने भी शुरू करा दिया। तो इस पर कितना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? जी, इस पर चेक एंड बैलेंस फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का होता है। यकीनन फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जब कोई भी इदारा फार्मेसी शुरू करना चाहता है तो वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को एक एप्लीकेशन देता है, वहाँ से एक तीन या 4 मेंबर की टीम तश्कील दी जाती है, आके विजिट करते हैं और उसके बाद उस इदारे को एनओसी जारी किया जाता है अगर वो मिनिमम स्टैंडर्ड पर आ जाए। जी, एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है फार्मेसी काउंसिल ने डिक्लेयर किया हुआ है, वो पब्लिश्ड है, नेट पर भी इदारे उस मिनिमम स्टैंडर्ड को अटेन करने के बाद जब काउंसिल का विजिट हो जाता है तो फिर उसको एनओसी जारी कर दिया जाता है। अब वो इदारे जो है वो बात को उनका प्रोसेस में होता है तो वो शुरू भी करा देते हैं बात। जी, वो पहले ये ज्यादा होता था, अब फार्मेसी काउंसिल का चेक काफी टाइट होता जा रहा है। तो अब इदारों ने जो है वो चूंकि उन पर हैवी फाइन्स की पॉलिसी बनाई गई, पिछली जो काउंसिल थी उसमें मैं भी मेंबर था, तो 100% जो है फीस का जो है प्रोपोर्शनेट से फाइन कर दिया जाता था और इदारों ने वो जिन्होंने बगैर फार्मेसी काउंसिल के अप्रूवल के एनओसी के दाखिले कर लिए तो उनको वो फाइन इम्पोज किया गया और कलेक्ट भी किया गया। उसमें बेहतरी आई है? जी, अब उससे कुछ बेहतरी आई है। असल में अभी भी बेहतरी की जरूरत है कि फार्मेसी काउंसिल को मैं समझता हूं कि इस पर चेक एंड बैलेंस ज्यादा करने की, मॉनिटर करने की ज्यादा जरूरत है। फार्मेसी काउंसिल को चाहिए कि सरप्राइज विजिट भी करे इदारों के, और फार्मेसी काउंसिल को चाहिए कि इदारों से मंथली बेसिस पर रिपोर्ट कलेक्ट करें। सर इसमें हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि आप मेंबर भी हैं पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के, मजीद किस तरह से चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, क्या तजावीज़ दी गई मीटिंग्स में और किस तरह से वर्क हो रहा है, तो हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे फार्मासिस्ट के हवाले से, उसके साथ साथ हमने क्लिनिकल फार्मासिस्ट के हवाले से बात की, कितना अहमियत है उसकी और किस तरह से इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है, इस पॉलिसी को लाया जा सकता है। तो हमारे साथ जिस तरह प्रो वाइस चांसलर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब। सर जिस तरह आप पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के मेंबर भी रहे, तो ये साथ जिस तरह चलता रहा, अब उसमें मजीद बेहतरी की क्या गुंजाइश है, मजीद वर्किंग किस तरह से बेहतर बनाई जा सकती है, और अदारों को जो हम लेके आ रहे हैं, जिनको हम अलाउ कर रहे हैं, तो अपने आपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स की बात की थी, अब उन स्टैंडर्ड को बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है? जी बिल्कुल, ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी मेंटेनेंस। तो इसके लिए फार्मेसी काउंसिल को चाहिए कि जो मंथली बेसिस पे इदारों की मॉनिटरिंग की जाए। ठीक है, मंथली बेसिस पे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मंथली बेसिस पे कलेक्ट की जाए, टीचर्स की परफॉर्मेंस मंथली बेसिस पे कलेक्ट की जाए, कितने प्रैक्टिकल हुए हैं उस इदारे में मंथली बेसिस में, फर्स्ट प्रॉफ में कितने हुए हैं, सेकंड प्रॉफ, इसी तरह सेमेस्टर बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, सेमेस्टर बेसिस और ईयरली बेसिस पे अगर हम ये प्रोसेस को जारी रखेंगे, हर स्टेप पे इंश्योर करते जाएंगे तो क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। और अगर हम चेक एंड बैलेंस छोड़ दें, एक इदारे को एक दफा एनओसी दे दिया और फिर उसको कभी पूछा ही नहीं और कि उसने जब इंस्पेक्शन करवाई तो उसके पास 3 प्रोफेसर थे मिसाल के तौर पर, फुल प्रोफेसर थे,
या 3 PID थे। जब उसको NOC मिल गया, उसने फिर देखा कि अब तो NOC मिल गया है, अब तो मुझे इनको इतनी हैवी प्रोफेसर्स को पे करने की क्या जरूरत है, इनको फर्क कर दिया जाए, लेक्चरर रख लिए जाए, तो वो लेक्चरर से वो क्वालिटी तो नहीं बनती, फिर वो लेक्चरर से भी नीचे आ जाते हैं फैकल्टी के हवाले से। फैकल्टी के हवाले इसके वर्किंग और मॉनिटरिंग काफी लाजमी है। जी सर, फैकल्टी जो है अच्छी फैकल्टी अपॉइंट होनी चाहिए, पढ़ी लिखी फैकल्टी लाजमी फॉलो होने चाहिए। बिल्कुल। उस हवाले से हम तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी इश्यूज आ रहे हैं कि वहाँ पर टाइम पर नहीं लाए जाते, कई प्रोफेसर की सीटें होती हैं। और हमारी जिक्र यूनिवर्सिटी में, निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी में आए रोज ये प्रॉब्लम सामने आता है कि फैकल्टी के इश्यूज आते हैं। PM में रोज कहते हैं कि फैकल्टी हमारे पास नहीं है, 4 डिपार्टमेंट एक प्रोफेसर ने संभाल रखे हैं, तो कैसे हम क्वालिटी दे सकते हैं, कैसे हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं। ये अलमिया है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी। जी बिल्कुल, ये अलमिया देखें, रिसोर्सेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें ह्यूमन रिसोर्स हो, उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, उसमें दूसरे रिसोर्सेज जितने भी ज़रूरी हैं, वो रिसोर्सेज अगर पूरे होंगे तो हम क्वालिटी को इंश्योर कर सकेंगे। पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क नहीं है, गरीब मुल्क है, रिसोर्सेज की कमी रहती है हमेशा रही है, लेकिन इस पे बेहतरी की गुंजाइश है। प्रोफेसर साहब, जिस तरह फार्मासिस्ट डे भी आने वाला है 25 सितंबर को, तो इस सवाल से इसका मनाने का रुझान कब से शुरू हुआ, इसकी रीज़न क्यों महसूस हुई, और हमारे यहाँ क्या इस हवाले से इसको मनाने की अहमियत कितनी है? जी, हम इसमें इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे, और उसके साथ कम से कम ये कहते हैं कि ये एक फेडरेशन है, ऑलमोस्ट 145 नेशनल एसोसिएशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस हैं और फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट की एसोसिएशंस हैं। ये टोटल उनके साथ एफिलिएट करती है। ये इसका जो बुनियाद डाली गई वो 1912 में, और उसके बाद वो भी 25 सितंबर 1912 था। फिर ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो पहली दफ़ा उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसको ये मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, वो टर्की में इस्तांबुल में इनका एक इवेंट हुआ 2009 में। तो उस वक्त से ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के तौर पे 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसको मनाने का मकसद क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं इस प्रोफेशन को या इस कम्युनिटी को, तो हम ये कहते हैं कि इस दिन में जो फार्मासिस्ट हैं, जो पायनियर फार्मासिस्ट हैं, जो अपने इस हेल्थ केयर प्रोफेशन में जो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना, कि उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज करना, उनको अप्रिशिएट किया जाता है और एक नया इरादा किया जाता है। अपने आप को एक समझ लें कि अपनी कमिटमेंट, जो फार्मासिस्ट है, अपनी कमिटमेंट टुवर्ड्स द हेल्थ केयर प्रोफेशन एंड द पेशेंट, उसको एक रिन्यू किया जाता है कि नहीं, मैं अपनी कमिटमेंट जो है मेरी सर्विसेज की वो रहेगी। ठीक है, तो ये एक डे के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट किया जाता है। और इस तरह से एक्टिविटीज यहाँ भी जी तैयारियां मुकम्मल हैं? जी, यहाँ पे भी तैयारियां हैं, हमारी फैकल्टी में भी होता है और पूरे ऑल ओवर द कंट्री, एटलीस्ट यहाँ पाकिस्तान में और एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और स्टूडेंट का सर इस तरह से जो रुझान नजर आ रहा है, स्टूडेंट इस शोबे में आने के लिए कितना पुरुमीद है, जॉब फ्यूचर कितनी है इसमें अगर बात करें तो? जॉब सिक्योरिटी तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की है कि जब हम ना एक ये बहुत ज्यादा डिमांड है, अगर हम हमारे जो पब्लिक सेक्टर में पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि हर इंडिविजुअल जो भी ग्रेजुएट हो वो पब्लिक सेक्टर में जाए। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल एवर। तो फिर हम यहाँ कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों सेक्टर में है। और यहाँ तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो? हाँ जी, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, लेकिन वो जब हम ये बात कर रहे थे ना क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, तो ये जब हम ये अपॉइंट करेंगे तो फिर हमारे पास बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में सीट्स मुख्तस करनी होगी। अगर 50 बेड पे हम कर देते हैं तो फिर इसके लिए बहुत ज्यादा इसकी वर्थ बन जाती है। और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के अलावा हम प्राइवेट सेक्टर में भी ये कहते हैं। अब विक्टोरिया हॉस्पिटल आपके पास है, हमारे पास निश्चित हॉस्पिटल है, तो वहाँ कितने बेड पर इस वजह से अभी है ही नहीं, पॉलिसी नहीं है? अभी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पॉलिसी वहाँ ये लेटर इशू हुआ था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो कभी अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे अपॉइंट नहीं हुआ। अगर हम बाहर से कंपेयर करें तो वहाँ पे इस सवाल से कितने बेड के हवाले से मुख्तस है? अभी तो वैसे जो हमारी यहाँ पॉलिसी जो डेवलप हुई थी वो 50 बेड पे एक फार्मासिस्ट की थी, एक 50 बेड पे। हमारा निश्चय में 1700 बेड ना हो यहाँ पर। विक्टोरिया हॉस्पिटल भी 1600 बेड का है, तो वहाँ अगर 50 बेड पे एक आए तो 32 फार्मासिस्ट तो एट वंस ही अपॉइंट हो सकते हैं, चाहिए, लेकिन वो अभी नहीं है। जी, और उसकी अपॉइंटमेंट से ये है कि भी
जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा वो अपॉइंटमेंट जब होगी ना, उसमें बहुत सारे इकोनॉमिकल है, फार्मासिस्ट अपनी सैलरी भी उसमें से निकालेंगे और इकोनॉमिकल है हॉस्पिटल के लिए, सर हम तो पेशेंट की वेलबींग के लिए भी। हाउस ऑफिसर और पीजी आज हॉस्पिटल चला रहे होते हैं और सारे फार्मासिस्ट भी ना हो तो फिर वो उनका तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो मेडिसिन उस तरह लिख के देना जिस तरह प्रोफेसर लिख के दे रहा होता है, तो वहाँ पे होना कितना लाजमी। सर आपका इस पे एक्सपीरियंस जाना चाहेंगे? जी ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे अख्तर साहब ने कहा कि अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपॉइंट करेंगे तो गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, पेशेंट का जो है क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट भी बेहतर होगा, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी कम आएगा, बचत भी होगी गवर्नमेंट को और सैलरियां निकल आएंगी। तो जो है वो फार्मासिस्ट जो है अपॉइंट होने चाहिए और क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपॉइंट अगर नहीं होते तो देखें ये एक हेल्थ प्रोफेशन ट्रायंगल है, डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड नर्स। तो जब तक ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगी ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्वालिटी ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट को मिलेगा। ये ट्रायंगल मुकम्मल होना बड़ा जरूरी है। आज ही काम करना होगा जी, काम करना पड़ेगा, लेकिन काम करना पड़ेगा। आज कर लेंगे, अभी से शुरू करेंगे तो बेहतरी आ सकती है। जी बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट इस चीज में सीरियस है, गवर्नमेंट अगर पेशेंट को क्वालिटी ट्रीटमेंट देना चाहती है तो आज ही से जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट को अपॉइंटमेंट शुरू करनी चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा कि चाहे मॉडल हॉस्पिटल में ही, चांदा हॉस्पिटल में ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना चाहिए कि इससे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम हुआ, इससे क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ा, इससे पेशेंट को क्या फायदा हुआ है। इससे अभी हुकूमत कहती है कि हमने बिलियन रुपीस रखे हुए हैं मेडिसिन के लिए, अब भी पेशेंट कहते हैं मुझे तो मिल ही नहीं रही और कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, उसके अलावा जो मिल रही है वो कहते हैं उसको क्वालिटी की नहीं है। तो मेन रीजन इसकी यही है मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, जहां पे मेडिसिन का निजाम है वो फार्मासिस्ट के बगैर चल नहीं सकता, कामयाब हो नहीं सकता। हाँ, डॉक्टर को हम क्या मालूम मैंने किस रेशियो से मेडिसिन डिवाइड करनी है, वो तो फिर एडमिन में किसी को बिठा देंगे तो वो प्रोसेस ही नहीं करा सकता। डॉक्टर का बेसिक जो ट्रेनिंग है या काम है वो है डायग्नोसिस करना और प्रेस्क्रिप्शन लिखना। बिल्कुल, जो मेडिसिन देना है और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना है या मेडिसिन से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने हैं, मेडिसिन को सेफ बनाना है, मेडिसिन को इफेक्टिव बनाना है, तो ये फार्मासिस्ट है। जब तक ये फार्मासिस्ट अपॉइंट नहीं होंगे तो मेरा तो अपना ये ख्याल है कि गवर्नमेंट हमारा हेल्थ सिस्टम बेहतर नहीं बेहतर हो सकता। सर इस तरह कोई उम्मीद नजर आ रही है? हाँ, हमें मतलब उम्मीद रखनी चाहिए, हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए कि हम इसमें दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सिर्फ हुकूमत पे भी नहीं डाल सकते। हमें यह है कि भी बहुत सारे ऐसे सेटअप जो जहाँ पे फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं उन्हें ज्यादा वर्क से ज्यादा एक्टिवली, ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करना चाहिए। और आई होप मतलब हमें बहुत ज्यादा होप है कि ये जब वो आप प्रोड्यूस करेंगे, जब आप क्वालिटी सर्विसेज देंगे, पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा, आपकी रिकग्निशन होगी। तो दोनों तरफ से है, हुकूमत को भी इस पे स्टेप लेने चाहिए और हमें भी जो फार्मासिस्ट हैं अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाना होगा ताकि मनवा सकें। सर लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर तो गवर्नमेंट इस पेशेंट को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहती है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अच्छा देना चाहती है, तो ये काम फार्मासिस्ट के बगैर या फार्मासिस्ट को रखे अपॉइंट किए बगैर मुमकिन नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में सोचे और क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपॉइंट किए जाएं। और इसके अलावा जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको चाहिए कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए और फार्मासिस्ट की प्रेजेंस को जो है कम्युनिटी पर इंश्योर किया जाए। सर लास्ट में आप क्या पैगाम देते हैं, मुख्तसर पैगाम? जी, हमें ये जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपॉइंट होने चाहिए, मैं ये कहूँगा कि भी सिर्फ क्लिनिकल फार्मासिस्ट नहीं, क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल जैसे हम कहते हैं कि मेडिसिन की क्वालिटी होनी चाहिए, जब इसी ने क्वालिटी को मेंटेन करना है तो फार्मासिस्ट भी क्वालिटी का होना चाहिए। तो हमें हाँ जी, जब वो अपनी सर्विसेज दे उसमें अपनी एफर्ट
शामिल करे, ताकि जब वो पेशेंट जिसके की साथ वेलबींग के लिए बेहतर बना वर्क सके। तब कर सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। प्रो वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर डॉक्टर नीरज साहब, आपको शुक्रिया, आपने इस हवाले से आए और नाजरीन को भी यकीन इस हवाले से इन्फॉर्मेशन दी। और हुकूमत से यही अब कहा यह जा रहा है कि अगर हमने हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाना है तो इस हवाले से जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं उस हवाले से इसको पॉलिसी को तमाम हॉस्पिटल में नाफिज करना होगा। आए रोज़ हम डॉक्टर्स का गिला सुनते हैं कि यार मेडिसिन दी, उसके बाद रिएक्शन हो गया और लवाकिन ने हॉस्पिटल में ये सारा कुछ किया, तो वो सिक्योरिटी बिल की बात करते हैं, उस तरह के मुतालबात की बात करते हैं। लेकिन जो रीज़न है उस पर काम होना चाहिए ताकि हम हेल्थ सिस्टम है उसको बेहतर बना सकें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।